हालेलुया हालेलुया बोले प्रभु यीशु मसीह की ખાસ સૂચન છે જે પાટલી હરોળની અંદર જેટલા પણ ભાઈઓ બહેનો જુવાનો બેઠા છે આપ સૌને વિનંતી છે કે વચ્ચેના ભાગની અંદર ખુરશીઓ છે તો આપણે ભરેલી સ્વયંસેવક તરત જ વ્યવસ્થા કરાવશે પાટલા ભાગની અંદર આ બાજુ જે બેઠા છે છેલ્લા બે ગાળાની અંદર વિનંતી છે અહીંયા આગળ આવી જશો ઝડપથી આ વચ્ચેના ભાગની અંદર જે ખુરશીઓ છે ઝડપથી આવી જશો અહીંયા આગલા ભાગની અંદર પાછલા ભાગની વચ્ચેના ભાગની અંદર જે ખુરશીઓ ખાલી છે થોડી ઝડપ કરીશું જુવાનો જેટલા પણ જુવાન ભાઈ બહેનો અન્ય બેઠા છે આપ સૌને વિનંતી છે કે ઝડપથી તમે આવી આપનું સ્થાન તમે લેશો आइए प्रभु का धन्यवाद करें इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर अद्भुत समय दिया उसकी स्तुति आराधना के लिए और हम विश्वास करते कि प्रभु की महान उपस्थिति हमारे बीच में है आमीन हालेलुया आइए अपने सिरों को झुकाए प्रार्थना करें प्रभु का धन्यवाद करें उस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है और आगे के समय में जो परमेश्वर ने हमारे बीच में जो परमेश्वर दास को भेजा है उसके द्वारा अद्भुत रीति से हमारे बीच में आज वचन को बोए जाने वाला है आमीन आइए अपने आंखों को बंद करें मैं विनती करूंगा हमारे इंडियन नेशनल फुल गॉस्पेल चर्चेस फेडरेशन भारत एडवाइजरी कमेटी के मेंबर आदरणीय आर के गामित सर आगे आएंगे हमें दुआ में अगुवाई करेंगे प्रार्थना करिए सनातन युगोना परमेश्वर पिता आभारी से આજની સવારને માટે આજની આ કૃપાને માટે પવિત્ર પરમેશ્વર પિતા તમારી હાજરીમાં એક જુવાનો તરીકે અને ફેડરેશનના એક આગેવાનો તરીકે તમારા ચરણોમાં પાપી શિર ઝુકાવવાને માટે અવસર પ્રાપ્ત થયો છે તમારી મહેરબાની પ્રાપ્ત થઈ છે એના માટે આભાર માનું છું ખાસ પવિત્ર પરમેશ્વર પિતા તમારા જુવાનોને માટે તમારું હૃદય છે અને આ જગા પર તે આજે પ્રગટ થવા પામે એવી મારી હૃદયની પ્રાર્થના છે પિતા આ તમારા જુવાનો તે આત્મામાં એક બળવાન બને તાજગી તેમના હૃદયમાં તે સ્થાપિત થાય અને પવિત્ર પરમેશ્વર પિતા દિવસોમાં તેઓ સળગતા થાય અને તમારા ઈરાદા પૂરા કરે એના માટે મારી પ્રાર્થના છે આ ભૂમિ પર જેટલા જુવાનોએ પગ મૂક્યો છે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કર્યું છે એ ભૂમિને એ જગાને તમે નિહાળી રહેલા છો અને પવિત્ર આત્મા તે ચલાયમાન થયેલો છે એના માટે આભારી છું આ પવિત્ર પરમેશ્વર પિતા પુલપીટની જગા હું તમારા હાથોમાં સોંપી દઉં છું આજુબાજુના વિસ્તારને હું તમારા હાથોમાં સોંપી દઉં છું પવિત્ર આત્માને અગ્નિ તે કોઠરૂપ બની રહી છે અને સ્વર્ગ તે ખુલ્લું કરવામાં આવેલું છે એના માટે આભારી છું પિતા અત્યારે થોડા સમયમાં આજે આ સેમિનારને પિતા પુત્ર અને પવિત્ર આત્માના નામે ખુલ્લું કરવામાં આવેલું છે તમારા દાસને અમારી મધ્યે મોકલવામાં આવ્યો છે કે તમારા જે ઈરાદા આ ફેડરેશન માટે ફેડરેશનના યુથને માટે આ ફેડરેશનના ભાવિ આગેવાનોને માટે છે તે આ જગા પર આજે આખર કે પ્રેક્ટિકલના રૂપમાં એક ભવિષ્યના રૂપમાં તે પ્રગટ થનાર છે એના માટે આભારી છું ધન્યવાદ કરું છું આ વેળાને માટે સગળો આદર સગળો માન અને મહિમા એ તમારો છે ત્રણેય દિવસ આ જગા પરથી એ માન મહિમા એ તમને જ મળતો રહે એ મારી પ્રાર્થના છે ફરીવાર આ જગાને તમારા હાથોમાં સોંપતા પ્રાર્થના મારા ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માગું છું આમેન આમેન હાલેલુયા हालेलुया जैसे कि पवित्र शास्त्र में बताती है कि प्रभु के सेवकगण जो है उनका आदर करना चाहिए उसका सम्मान करना चाहिए और यह समय है कि हमें सब मिलकर उनका आदर करें सम्मान करें उनका स्वागत करें उसके पहले हमारे बीच में पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महान उपस्थिति है आइए अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए जोरदार ताली बजा के धन्यवाद करें उनका स्वागत करें उनकी आदर करें आमीन Indian National Full Gospel Churches Federation भारत present Power of Conference 2024 के लिए जिनको हमें इनवाइट किया है वो हमारे बीच में आज पास्टर माइकल फर्नांडिस उनके टीम के साथ हमारे बीच में पधार चुके आ चुके हैं और इस समय है कि उनका हम आदर के उनका सम्मान करें उनके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं
लेकिन एक दो बातें बताना चाहता हूं कि जो कि आज हमारे बीच में वचन बोलने वाले हैं पास्टर माइकल फर्नांडिस, जो कि करुणा सदन मिनिस्ट्री के संस्थापक है, फाउंडर है और मुंबई में उनकी सेवा स्थापित है। उनके साथ साथ यूके, दुबई और गोवा में भी उनकी सेवा के चल रही है। साथ में बहुत सारे बुक्स उन्होंने लिखे आदमी का फॉर्मेशन के लिए, हमारे उन्नति के लिए। परमेश्वर ने प्रोफेटिक का जो भी दान दिया है और प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में भी वो बहुत सारी ये सेवा कार्य में आगे बढ़ रहे हैं और परमेश्वर ने उसके विश्वास में दे प्रभु के वचन के अनुसार उनको जो भी परमेश्वर ने उनके जीवन को भरा है और वो सेवकाई के साथ आज हमारे बीच में है। फेडरेशन की ओर से उनका स्वागत करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि वो अपने स्थान पे खड़े रहे, आगे आइए, उनका हम स्वागत करेंगे। और हमारे इंडियन नेशनल फुल गॉस्पेल चर्चेस फेडरेशन भारत के जनरल सेक्रेटरी रेवरेंड आर पटेल सर आगे आएंगे, बुके देके उनका स्वागत करेंगे और हम सब तालियां बजा के फिर से एक बार इसका स्वागत करेंगे, इसका आदर करेंगे। आइए जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। आपका स्वागत है सर। साथ में हमारे इंडियन नेशनल फुल गॉस्पेल चर्चेस फेडरेशन भारत के बिशप आदरणीय बनहर सिंह राज को विनती करूंगा, वो भी अपने स्थान पे खड़े रहेंगे, उनका भी स्वागत करना चाहते हैं। और हमारे यूथ सलीम भाई आगे आएंगे, उनको बुके देके उनका स्वागत करेंगे। जोरदार ताली बजाते रहे। इस सुबह हमारे बीच में जिन्होंने अद्भुत रीति से स्तुति आराधना में अगुवाई किया, वह सिस्टर जो दिल्ली से है, मैं विनती करूंगा सिस्टर परसिस जॉन स्टेज पे आएंगे, उनका स्वागत करना चाहते हैं। और मैं विनती करूंगा सरोज बेन आगे आके उनको स्वागत करेंगे। आइए बजाते रहे। और आज सुबह हमारे साथ डॉक्टर सेम क्रिश्चियन है, जो कि ब्लेसिंग फॉर नेशन के संस्थापक है, उनका भी स्वागत करना चाहते हैं, वो आगे आएंगे। और मैं विनती करूंगा अशोक भाई आगे आएंगे, उनका पुष्प गुच्छ दे के उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में पास्टर बोनाफर है और उनके वाइफ बीना कोटक है, जो कि हमारे आज ट्रांसलेटर भी है। तो मैं विनती करेंगे वो दोनों साथ में आएंगे स्टेज पे। और मैं विनती करूं भाई बेंजामिन और अल्बिना स्टेज पे आएंगे, उनका स्वागत करेंगे। आप दोनों का स्वागत है। फिर से जोरदार ताली हो जाए इस फैमिली के लिए। और साथ में जो मुंबई से टीम है, उनके स्टाफ है, उनके साथ जो भी आए जितने मेंबर्स मुंबई से, मैं विनती करूंगा स्टेज पे आ जाइए। और संजय भाई और उनके साथी आगे आएंगे, उनका स्वागत करेंगे। मुंबई से जो हमारे बीच में उनके साथ जो टीम आई, उनका भी स्वागत करना चाहते हैं। जोरदार ताली बजाते रहे, आमीन। और साथ में हमारे बीच में पास्टर आशीष और उसकी फैमिली हमारे बीच में पार्टी से, मैं विनती करूं फैमिली के साथ वो आगे आएंगे, फूल देकर उनका स्वागत करेंगे। क्या हम जोर से ताली बजा सकते हैं हमारे गेस्ट के लिए? आमीन।
Benjamin. और साथ में हमारे बीच में पास्टर गिरीश भाई जो कि वागजरी से है, मैं विनती करें वो भी आगे आएंगे, उनका भी स्वागत करना चाहते हैं। और हमारे बीच में एक यूथ आगे आएंगे, उनको फूल देके उनका स्वागत करें। भाई प्रमोद। आज सुबह हमारे बीच में आदरणीय जयराम भाई गामित आदिवासी विकास संगठन के संस्थापक और प्रमुख हैं, वो भी आएंगे। उनके साथ इंडियन नेशनल फुल गॉस्पेल चर्चेस फेडरेशन भारत के जनरल सेक्रेटरी रेव RM पटेल सर और उनका पूरा टीम ट्रस्टी बोर्ड के साथ स्टेज पे आ जाएंगे। मैं चाहूंगा कि पूरा ट्रस्टी बोर्ड इस समय स्टेज पे आएंगे। और जो एडवाइजरी कमेटी है हमारे बीच में, मैं विनती करूंगा आदरणीय राम भाई और पास्टर अन्ना भाई जो भी हमारे अगुए हैं, हमारे ट्रस्ट बोर्ड के मेंबर हैं, इन सभी का हम स्वागत करेंगे और हम उनके लिए जोरदार ताली बजाते रहेंगे। यह टीम जो है हमें अगुवाई करती है, हमें लीड करती है, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, हमेशा दिशा को बताती है। और हमारे लिए जो परमेश्वर नियुक्त ये है, ये अगुए, उनके लिए फिर से एक बार जोरदार ताली हो जाए। ब्रदर प्रॉल का भी स्वागत करते हैं। ब्रदर प्रॉल आगे आएंगे। ब्रदर प्रॉल और विपिन भाई को विनती करूंगा, ब्रदर प्रॉल को फूल देके उनका स्वागत करें। पास्टर संजय भाई आपका भी स्वागत करते हैं। पास्टर संजय भाई, भाई प्रमोद उनका स्वागत करेंगे। और आज सुबह जितने भी हमारे जवान लोग, हमारे बुजुर्ग लोग, जितने भी पासवान लोग आए हैं, हम सभी का स्वागत करता है। सबके लिए जोरदार ताली हो जाए। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग संस्था के जितने भी लोग आए हैं, हम सब आपका स्वागत करते हैं। फिर से एक बार बहने भाइयों के लिए और भाई बहनों के लिए जोरदार ताली बजा के एक दूसरे का स्वागत करेंगे। आमीन। आइए, ये समय है प्रभु की आराधना के लिए थोड़ा समय बिताने का। और मैं फिर से एक बार विनती करूंगा कि हमारे बीच में सिस्टर परसिस जॉन है, वो आगे आए, हमें स्तुति आराधना में अगुवाई करें। इसके बाद उनके साथ ही तुरंत हम प्रभु के वचन में चले जाएंगे। उनके साथ साथ ही प्रभु की महान उपस्थिति में रह के बने रह के हम वचन की सेवा में चले जाएंगे। आए मिलकर परमेश्वर के वचन को हम सुनने से पहले अपने आप को तैयार करें कि प्रभु आज हमसे बात करने पाए अपने दास के द्वारा। हालेलुया। बीज बोने वाला जब गया तो जब उसने बीज को डाला, कई जगह अलग अलग प्रकार के भूमि पर वो गिरा, लेकिन अच्छी भूमि पर जब वो गिरा तो वचन, वो बीज 30, 60 और 100 गुना फल लाया। आज हम अपने आप को कहें
कि प्रभु मैं वो अच्छा ज़मीन, वो फर्टाइल लैंड, सॉइल में बनना चाहती हूँ जिसके ऊपर प्रभु आपका वचन प्रभु जब गिरे तो वो 100 गुना फल लाने पाए। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Let's lift our hands to the Lord this morning right now. आइए हम प्रभु की ओर अपने हाथ को ऊपर उठाएं। This morning, already the presence of God is here. और आज सुबह परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। And today, if you want God to do something in your life, और अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कोई काम करे, then this is the moment you need to lift your hands. तो यही पल है जहाँ पे हमें अपना हाथ ऊपर उठाना Every है। hand lifted up to God. हर हाथ परमेश्वर के आगे ऊपर उठाया जाए। Today, आज Father, this morning, पिता आज सुबह open our eyes and our ears हमारी आंखों को और हमारे कानों को खोलना, to see कि हम देख and to सकें hear और हम सुन in सकें the realm of the Spirit. आत्मिक जगत में। In the name of Jesus, यीशु के नाम I में decree and declare मैं ऐलान करता हूँ, घोषणा करता हूँ that these people will be as people, the end time harvesters. और ये ऐसे लोग होंगे जो अंतिम दिनों में फसल को काटेंगे In Jesus' name. यीशु के नाम And God's में। people said amen. और परमेश्वर के लोगों ने कहा आमेन। Amen. Hallelujah. हालेलुया। प्रभु को जोरदार तालियों की भेंट देंगे. Come on, जोर से. Give a loud clap to the Lord. नहीं, मजा नहीं आया. जोर से. We'll give a loud clap to the Lord. Let's give him the glory. First of all, thank you, sister, woman of God, sister Persis John. Thank you so much for pulling down the presence of God. ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी में बात नहीं करता हूँ. It's not that I don't speak in Hindi. खड़े रहे इस वक्त. क्या होता है कि अक्सर प्रभु जो है यहाँ पर कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट लाइव आता है. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Most of the times God directly talks. It's not the preparations that तो we have कभी done. कभी 3 लाइन होते हैं यहाँ पर, तो पूरा लाइव आता है, तो उसे इंग्लिश से हिंदी में लाने के लिए थोड़ा समय लगता है. It कितने takes लोग time. समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ इस वक्त? तो ऐसा मत समझिए कि मैं हिंदी में नहीं बात करता हूँ. हिंदी में जरूर बात करता हूँ. ओके, तो बीच बीच में इंग्लिश में बोलूंगा तो संकोच मत पकड़िए. ओके, If I speak in English, do not mind. ओके, कितने लोग समझ रहे हैं मेरी हिंदी को? ओके, आपकी इतनी अच्छी हिंदी नहीं है. ओके, आप लोग, प्रभु ने आपको यहाँ पर लेकर आया किसी मकसद से लेकर. Amen. God has brought you here for a purpose. कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? आगे जाने से पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ. Before we move ahead, I want to say one thing. मैं कोई भी कॉन्फ्रेंस में गया नहीं, एक ही कॉन्फ्रेंस में गया था. सुनिए इस वक्त. I've never gone to any conference, only one. बहुत साल पहले अंकल डीजेस दिनकरन के कॉन्फ्रेंस में गया था Years ago, I had gone to Dr. D.J. Dinakaran's और मैं conference. बहुत ही पीछे बैठा था. And I was sitting right behind. सुनिए इस वक्त. Listen carefully. और उस दिन मैंने प्रभु से एक बात की. And that day I told one thing to the Lord. प्रभु, Lord, आगे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, the people who are sitting in front are really honorable. लेकिन अगर तू मुझे इस्तेमाल करना चाहता है But if you want to use me, तो मैं अवेलेबल हूँ प्रभु. then I'm available for you. और उस दिन प्रभु ने जो कार्य किया, And that day, the work that Lord did in my life, 26 सालों तक अभी तक चल रहा है. it's been 26 years and He's faithful in working towards तो me and आपके through ऊपर me. है. And it's up to you. अगर आप ऐसे ही घूमने फिरने आए हैं, If you have just come to roam around, ठीक है, that's okay. लेकिन मेरे जैसे अगर आप भूखे हैं, प्यासे हैं, But if you're really hungry and thirsty for the Lord like तो me, प्रभु आपके जीवन में बहुत कार्य then करेगा. definitely God is going to do mighty works in your किसी life. किसी को प्रभु चंगाई करेगा. Let me establish this right now. और कुछ बातें मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ. ओके, देर रात को मैं प्रार्थना कर रहा था, सुबह जल्दी उठ के प्रार्थना कर रहा था, Late कम night. सोया हूँ. ओके, I've slept little less. I was praying in the morning and even late night. सुनिए इस वक्त. Listen carefully. मैं तैयारी से आया हूँ. क्या आप लोग ग्रहण करने के लिए तैयार हैं क्या? I have prepared myself, but are you ready to किसी receive? किसी पर प्रभु भविष्यवाणी करेगा. On some people, God is going to release a ध्यान prophetic से word. सुने.
एक पर भविष्यवाणी इसका मतलब सब पर If भविष्यवाणी। there's prophecy on one, that means the prophecy is on everybody. कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? How many of you are किसी listening? किसी को डिलीवरेंस होगा, And some people will experience deliverance. लेकिन अपने मन को आज खोलें इस वक्त। But you open your heart today for the Lord. कितने लोग तैयार हैं इस वक्त? How many of you are मैं ready? बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, I'm a simple man. ओके, लेकिन मेरा प्रभु बहुत ही Amen, महान amen. असाधारण है। Amen. अपने But my हाथों को God उठाएं, is ऐसी supernatural and प्रभु को स्तुति mighty. दो, कम ऑन, जोर से। आइए हम जोरदार ताली बजाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे. यस यस, प्रेज गॉड, वंडरफुल वंडरफुल, Thank you, Jesus. बहुत अच्छा। अच्छा सुनिए इस वक्त, अभी मैं पास्टर हूँ, ओके, सुनिए इस वक्त मैं अपने को पास्टर कहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग 4 लोगों से जाकर मिलिए इस वक्त जिन्हें आप पहचानते नहीं, और उन पर भविष्यवाणी कीजिए और बोलिए तुम्हारी जिंदगी बदल रही है। As a प्लीज pastor, निकलिए I इस tell, वक्त, रेडी, यस, Go around, meet 4 निकलिए इस people वक्त, निकलिए इस, क्योंकि whom you don't आप लोग know. बहुत ही शर्मीले किस्म के लोग मुझे डिसर्न हो रहा है इस वक्त, जिनसे आप मिले नहीं थे। सर आपके पैरों को हटाइए, देखो कितना मुश्किल लग रहा है, तो ऑफरिंग देने में कितना मुश्किल होगा फिर। निकलिए 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 निकलिए, बहनें भी निकले, कोई कोई बहनें तो हिल ही नहीं रही हैं। Sisters जल्दी also से। move around, meet new people. नहीं नहीं bless सर, them. आपको हिलना है। अगर आप परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना है तो ये सबसे पहला प्रोफेटिक आदेश है, वो आपको करना है। अपने जगह से हिलिए और किसी पर भविष्यवाणी कीजिए, बोलिए प्रभु तुम्हारी जिंदगी को बदल रहा है। और Prophesy. ऐसे लोगों पर जिन्हें आप पहचानते नहीं हो। Whom you do not know, prophesy that God is going to change your life. आमेन। Amen, amen. जोर से बोले आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. मजा नहीं है, जोर से बोलिए हालेलुया। Hallelujah. ये तंबू वंबू फटना चाहिए, जोर से बोलिए हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। हम समय आएगा, बैठे बैठे, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। आप सब बैठ सकते हैं. Yes. Are we doing that in Mumbai? Praise God. Thank you, choir. Choir team के लिए जोरदार तालियों के भेंट दीजिए. आइए हम Come choir on, team के wonderful. You all are good. I was listening to the worship going on. Wonderful. और Praise मैं God. आराधना सुन रहा था, बहुत ही अद्भुत आराधना हुई है. Let's turn our Bibles to the book of Mark, chapter 10 and verse 46. आइए हम अपनी बाइबल खोले, मरकुस की किताब 10:46. Mark chapter 10 and verse 46. मरकुस की किताब 10वां अध्याय 46वीं आयत. Please अपना बाइबल खोले, मैं थोड़ा old fashioned हूँ, सब लोगों को कहता हूँ कि बाइबल खोलिए बोल। I'm an old-fashioned pastor and I want every one of you to open your Bible and read with me. अब पौलुस के बिछड़े भाई भी हो सकते हैं, प्लीज अपना बाइबल खोलिए सर। Even if you are Paul's brother and you know the Bible very well, still open your Bible and read. यस, सभी लोग जो पीछे बैठे हैं, ओके, प्लीज भी आप भी जरा आगे आ सकते हैं, अगर कष्ट कर सकते हैं तो आगे आइए। यस, बहुत समय मिलेगा फेलोशिप के लिए, आगे आइए आप। Thank you so much for your obedience. Mark chapter 10 verse 46. Now they came to Jericho. मरकुस 10:46. अब वो यरीहो में आए And he went out of Jericho with his disciples. और जब वो यरीहो से बाहर अपने चेलों के साथ गया, And a great multitude, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the road begging. तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे चली और तिमाई का पुत्र बर्तिमिया जो अंधा भिखारी था, वो सड़क के किनारे बैठा था. Listen carefully. ध्यान से सुनिए, Please pay attention now. कृपया ध्यान This दीजिए. man Bartimaeus, और ये जो व्यक्ति बार्तिमई है, he had no future. इसका कोई भविष्य नहीं था. Yes, the Bible describes him as the son of Timaeus. और बाइबल इसका उल्लेख करती है ये तिमई का बेटा था, But he had no future. पर इसका कोई अच्छा भविष्य नहीं But था. little did he know that his future was about to change. पर उसे पता नहीं था कि अब उसका भविष्य बदलने पर था. Little did he know that his destiny was about to change. उसे पता नहीं था कि अब उसकी मंजिल बदलने वाली है. अपने पड़ोसी से कहो तुम्हारी मंजिल बदलने वाली है। Tell them that the destiny is going to change. Hallelujah. Amen, amen. कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? You see, church, we have to be sensitive to the Holy Spirit. और कलीसिया देखिए कि हमें अपने आप को पवित्र आत्मा के प्रति खुला रखना है. This is what was the one thing that Bartimaeus did. और ये एक काम था जो बर्तिमाई ने किया. Look what it says. देखिए क्या In लिखा Mark है. chapter 10 and verse 47. और मरकुस 10:47. It says, when he heard that it was Jesus of Nazareth. और जब बर्तिमाई ने सुना कि ये यीशु नासरी है,
when he heard that it was Jesus of Nazareth. और जब बर्तिमाई ने सुना कि ये नासरी का यीशु है, नासरी का यीशु है. सुन रहे हैं आप लोग? You see, church, what Bartimaeus heard was the people talking. और जो बात बार्तिमाई ने सुनी वो वही सुनी जो लोग बोल रहे थे. लोग बोल रहे थे. He was blind, so he could not see. Of वो course, we know अंधा that. वो अंधा था, वो देख नहीं पा रहा था, पर उसने लोगों की बातें सुनी. And he heard that it was Jesus of Nazareth. This term, Jesus of Nazareth, was a derogatory term. और ये उसने बात सुनी लोगों से कि यीशु नासरी आ रहा है, और ये जो नासरी शब्द है ये अपमाननीय शब्द है. यीशु मसीह कहाँ का? नासरी का. नासरी का. ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा टाइटल नहीं है. और ये कोई बड़ा शीर्षक नहीं है. यीशु मसीह नाजरत का. कौन जा रहा है? यीशु मसीह जा रहा है. कहाँ जा रहा है? वो नाजरत में रहता है ना, वो यारा में रहता है ना, वो जा रहा है. कितने लोग समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ये हल्का शब्द था. कोई तो कहो ये हल्का शब्द था. ये Yes. हल्का Because you शब्द. see, in John 1:46, Because हम देखते हैं यूहन्ना 1:46 में there was a man called Nathanael. He says, "Can anything good come out of Nazareth?" और एक व्यक्ति है नतनिएल, वो कहता है कि क्या नासरी से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? Can anything good come out of Nazareth? क्या नासरी से कोई अच्छी बात निकल सकती है? नाजरत का नाम ही बदनाम था. हो सकता है आप ऐसे शहर से, ऐसे गांव से आ रहे हैं जहां पर कुछ बड़ा कार्य नहीं हो रहा है. ऐसे जगह से आ रहे हैं, ऐसे परिवार से आ रहे हैं, ऐसे पृष्ठभूमि से आ रहे हैं जहां पर आपको कोई सम्मान नहीं करता, आपकी कोई इज्जत नहीं करता है. Maybe you're coming from a small place where nobody honors you, nobody recognizes you. This is your identity. पर ये आपकी पहचान है. You see, the people were talking about Jesus of Nazareth in this manner. और इस तरीके से, इस नजरिए से लोग यीशु, नासरी का यीशु इस तरीके से बातें कर There रहे was one थे. more judge called Samson. और एक न्यायी था जिसका नाम था Of course, we शमौन. know he's a Nazarite, but Bible scholars say he was closely associated with Nazareth. और हमें पता है कि वो नासरी था, पर हम बाइबल कहती है कि वो नासरी शहर से आया था. Even he was a total failure. और वो भी हम देखते हैं जीवन में आगे चल के नाकामयाब हुआ. Of course, God's grace that in the end he killed more Philistines than in his entire lifetime. और हम देखते हैं कि परमेश्वर की कृपा ऐसे उस पर उतरी कि जीवन भर में जितना उसने काम नहीं किया, जीवन के अंतिम पल में उतने फलिस्तियों को उसने मारा. वो प्रभु का अनुग्रह था. कितने लोग समझ रहे हैं? लेकिन नासरत से कोई भी भली अच्छी वस्तु नहीं आई थी. और जब वो यीशु मसीह को नासरत से जोड़ रहे थे तो वो बड़ा नाम नहीं ले रहे थे. वो बोल रहे अरे ये कौन है यार, ये तो नासरत का है. आप समझ रहे हैं? जब आपके परिवार के लोग आपके बारे में बात करते हैं तो इसी तरीके से बात करते हैं. करते कि नहीं? अरे वो जो मसीह बन गया. I'm telling you, मैं आपसे कह रहा हूँ, this was, now the Bible says in Romans 10:17, write it down. जो मैं scriptures देता हूँ, जो मैं अध्याय दे रहा हूँ, सिर्फ आपको मनोरंजन के लिए नहीं, आपको लंच ब्रेक में उसे पढ़ना है, उसको अध्ययन करना है. the verses that I'm giving you all, please write, and during the lunch time you all have to read those verses. कितने लोग सुन रहे हैं? Meditate on those verses. ये मेरी जो टीम है, जो मेरे जो लीडर्स होते हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, इतने सारे तो हमारे लीडर्स हैं. We have many तो उनको मैं leaders in our पूछते रहता हूँ, team. चलो बताओ ये वचन बताओ, वो वचन बताओ. तो आपको अध्ययन करना है. बाजू वाले को बोलो बी सीरियस. और किसी से कहिए कि वचन में गंभीर बनिए. Romans 10:17 says faith comes by hearing और रोमियो की किताब 10:17 में लिखा है कि विश्वास सुनने से आता है, and hearing by the word of God. और वचन को बार बार सुनने से विश्वास आता है. कैसे विश्वास आता है? विश्वास सुनने से आता है. कभी कभी जो हमारी सिर्फ जो बातें हमारी चारों ओर चल रही हैं, हमारी आजू बाजू में चल रही हैं, उससे भी हमारा विश्वास या तो बुलंद होता है या तो कमजोर होता है. सुन रहे हैं आप लोग? कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ हिलाइए. प्रेज गॉड, आप लोग सुन रहे हैं. और and this is what Bartimaeus heard. और यही बात बर्तिमाई ने सुनी. He said that, oh, this is Jesus of Nazareth. This is the revelation that Bartimaeus carried. और उसने ये बात उसके कान में गई कि यीशु नासरी आ रहा है, और ये प्रकाश उसने अपनी आत्मा में पकड़ा. Are you listening, church? क्या आप सुन रहे हैं? But you see, in Isaiah 53, please open your Bibles. आप अपनी बाइबल खोलिए. यशायाह की किताब 53वां Isaiah अध्याय. 53 verse 3 says और यशायाह की किताब 53:3 में लिखा है that Jesus the Messiah would be a man despised and rejected by men. और यीशु जो मसीहा होगा वो लोगों की नजर में तुच्छ रहेगा और लोग उसे नहीं स्वीकारेंगे. It was prophesied. और इसकी भविष्यवाणी पहले ही की गई थी. जैसे सिस्टर पर्सिस जॉन ने वर्शिप लीड कर रहे थे समय बोला
कि the foolish, God uses the foolish कि परमेश्वर मूर्ख लोगों का इस्तेमाल करता to है shame the wise. I heard ताकि you. बुद्धिमानियों को शर्मिंदा कर सके। कितने लोगों ने सुना सुबह के समय? आप में से कितने लोगों ने ये सुनी बात? जो लोग लेट आए वो लोग भी आप सुन लो दोबारा, प्रभु आपसे बात कर रहा है। God is talking to you, hear it again. एक भविष्यवक्ता ने मुझसे कहा, जो अफ्रीका में थे, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, जब एक ही वचन अगर तू 2 बार सुन रहा है तो प्रभु तुझसे बात नहीं कर रहा है, प्रभु तुझसे तेरा चिल्लाकर बात कर रहा है क्योंकि तू पहली बार सुना नहीं। And there's a prophet in Africa who said if God speaks twice, he's not just talking to you, he is telling you, he is warning you again and again. Warning you, trying to get your attention और परमेश्वर आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। वो because you आपको did not hear it the first time. आपने पहली बार नहीं सुना इसलिए वो दोबारा बोलता है। So you see, this was the situation that Bartimaeus was in. और देखिए कि बर्तिमाई की हालत ऐसी थी। But उसके बाद क्या हुआ देखिए इस वक्त, Mark 10, please follow me very carefully. और आप ध्यान से सुनिए मरकुस 10 Mark chapter 10 and verse 47. और मरकुस 10:47। He began to cry out and say, और वो पुकार कर जोर जोर से कहने लगा, Jesus, यीशु, son of David, हे यीशु दाऊद की संतान, have mercy on me. मुझ पर दया कर। उसने क्या सुना था? चलो मेरे पीछे बोले, उसने क्या सुना था? What did he hear from people? मेरे से बात कीजिए। हाँ, इनको चाय नहीं मिलेगा सुबह के। मेरे से बात कीजिए इस वक्त। Respond to what I'm Yes, thank you asking. brother। आप एक ही ब्रदर ने हाथ उठाया, मैं उधर आऊंगा पहले प्रोफेसी के लिए। सच में देखना, उधर से ही शुरू करूंगा। तो अब मेरे से बात कीजिए। उसने क्या सुना था सर लोग? क्या सुना था उसने? What did Bartimaeus hear? जोर से बोलिए। ए भाई लोगों ने चाय नहीं पी है। बहने, कम ऑन, जोर से। ये देखो, बहुत अच्छा है। बर्तिमेउस ने क्या सुना था? यीशु नाजरी। यीशु नाजरी। जोर से बोले, उसने क्या सुना था? यीशु नाजरी। ये कहां का बंदा है? नाजरी का। नाजरत का बंदा है, यीशु नाजरी है। उसने सुना, he heard a revelation from the crowd और बर्तिमाई ने भीड़ से एक बात सुनी कि ये नाजरत का यीशु है। that he is Jesus of Nazareth. But what did he speak? उसने ये सुना कि ये नाजरत का यीशु है, पर बोलते वक्त उसने क्या बोला? He spoke and he said, Jesus, son of David. जब उसने Hallelujah. यीशु को पुकारा तो ये नहीं कहा कि नासरी यीशु, उसने कहा हे यीशु दाऊद की संतान। Hallelujah. हालेलुया। सुनिए इस वक्त, ध्यान से सुनिए, you listen carefully. ध्यान से सुनिए। You see, when you have a revelation bigger and different than the people around you, जब आपके पास ऐसा प्रकाश है जो बाकी लोगों से कई ज्यादा सामर्थ्यशाली और बड़ा है, it's that time you have an encounter with God. तो जिस पल आपको वो प्रकाश मिलता है उसी पल आपका परमेश्वर के साथ आमना सामना होता है। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? I'll say that again. मैं Please फिर से listen कहूंगा, carefully. ध्यान से When you सुनिए। have an encounter, जब आपकी परमेश्वर से मुलाकात when होती you है, have a revelation जब आपको वचन का प्रकाश मिलता that है, is greater than the people around you. ऐसा प्रकाश जो बाकी लोगों से कई ज्यादा प्रकाशमान है, You सामर्थ्यशाली see, है। people around the world, around you, they know that there is a God. Of और course they आपके know there is a आसपास God. के- What do I mean? Yes. आपके आसपास के जो लोग हैं, दुनिया के लोगों को पता है कि एक खुदा है, But they don't know the living God. बट उन्हें जीवित खुदा नहीं पता। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? They don't know the living God. उन्हें जीवित खुदा नहीं पता But है। you know, John 17:3 that yes, Jesus is the one whom God sent. Hallelujah. पर आपको पता है यूहन्ना 17:3 में लिखा है कि हाँ यीशु को परमेश्वर ने भेजा है He is our Savior. और वही हमारा उद्धार करता He is है, our Lord. वही Hallelujah. हमारा प्रभु है। When you carry that revelation, जब आप इस प्रकाश को लेकर चलते हैं you will have an encounter with God. तो आपकी मुलाकात सीधे परमेश्वर से होगी। अपने पड़ोसी से कहो, इसीलिए तुझे वचन में जाना है। And that is why we have to go into the word of God. सिर्फ हाथ नहीं लगाना भाई लोग, बोलो, मुंह भी खोलो। भाई लोग सिर्फ हाथ लगाते हैं। हमारी बहनी अच्छे हैं, हाथ लगाने से पहले मुंह खुलता है उनका। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Sorry, I'm a little strict, but then that's fine. मैं तुम्हारा थोड़ा काम बन जाएगा। सख्त हूँ बट सही है, आपका काम हो जाएगा। Praise the Lord. Praise the Lord. You see, church, I want you to understand because I'm feeling that some of you are still to get it. Then I'll increase my speed. Don't worry.
मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद मैं You see, जल्दी से Bartimaeus carried बताऊंगा। a different revelation. और जो बात बर्तिमाई ने लोगों से सुनी थी उससे उसका प्रकाश बहुत अलग था। He didn't follow what the people are saying. जो लोगों ने कहा उसने उनकी बात नहीं सुनी। He didn't hear and just respond to what people are saying. और He जो- said, no, 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 no. This guy is not Jesus of Nazareth. He is somebody bigger. Amen, He is amen. the son of David. और जब बर्तिमाई ने लोगों की बात सुनी कि ये नासरी का यीशु है, उसने सिर्फ ये बात नहीं सुनी पर वो ये बात जान गया कि ये सिर्फ नासरी का यीशु नहीं है पर ये दाऊद की संतान है। बाजू वाले किसी से कहो दाऊद की संतान है। सन ऑफ डेविड। दाऊद की क्या संतान है? You listen, he did not say son of Solomon, son of somebody Zechariah or somebody. He said son of David because he immediately called him, in other words, the Messiah. और बर्तिमाई ने ऐसे नहीं कहा तू कि शमूएल का बेटा है या जकरिया का बेटा है, नहीं, उसने कहा कि तू दाऊद का बेटा है। इसका मतलब है कि वो कहना चाहता था कि तू ही मसीहा है। Hallelujah. हालेलुया। You see, he was calling him the Messiah. और जब वो कह रहा था कि तू दाऊद की संतान है, मतलब वो कह रहा था कि तू ही मसीहा This है। revelation made Jesus to stop. और ये जो प्रकाश उसे मिला था और उसने जो कहा उसके वजह से यीशु वहां रुक गया। यीशु मसीह एक जगह पर जा रहे थे, यरीको में प्रवेश किए थे और यरीको से बाहर ही निकल रहे थे, लेकिन जब बर्तिमेस ने उसे पुकारा, उस प्रकटीकरण से पुकारा, तो यीशु मसीह के पैर जो है उस जगह पर रुक गए और बर्तिमेस की तरफ मुड़ गए। When Jesus was going out of Jericho, but when he heard this revelation coming from a man that I am the Messiah and the son of David, Jesus had to stop. हालेलुया। Hallelujah. जब तुम्हारी प्रार्थना प्रकटीकरण से भरी हुई होती है, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर Amen. आएगा। When your prayers are filled with the revelation of the word of God, the answer will come. सब जन बोले मेरी प्रार्थना वचन पर आधारित होनी चाहिए। My prayers, जोर से बोले मेरी प्रार्थना वचन पर आधारित होनी चाहिए, मेरे फीलिंग्स पर नहीं, मेरे इमोशंस पर नहीं। मेरी भावनाओं पर बोले नहीं। मैंने इतनी प्रार्थना की, क्या हुआ? अरे सर, क्या पता तुम्हारा ब्रेक थ्रू, तुम्हारा आश्चर्यकर्म तुम्हारे सामने खड़ा है। Amen, amen, amen. सुन रहे हो ना इस वक्त? यस, आज प्रभु आपसे कार्य करेगा God is going to आपके work in जीवन your में। life. You see church, this is so important. ये बहुत ज्यादा जरूरी है Then you understand this. कि आप ये बात को समझें। Bartimaeus carried a different revelation और and he spoke out that और revelation. बर्तिमाई के अंदर यीशु को लेकर जो प्रकाश था वो बहुत ही अलग था और उसी अनुसार उसने मुंह खोलकर बोला। Before he could receive his sight, he had insight. इसके पहले कि उसे वो दृष्टि मिलती, उसे अंदर की दृष्टि मिल गई थी। Hallelujah. हालेलुया। क्या बात है। उसको दृष्टि मिलने से पहले उसको अंदर की दृष्टि उसकी चमक गई। आमेन, आमेन। हालेलुया। आपका आमेन बहुत हल्का है भाई लोग, शायद स्टेज हम लोग को थोड़ा उधर करना पड़े। बहनें इनके जैसे मत बनो, आप लोग चिल्ला सकते हैं इस वक्त, ओके? हमारे चर्च में कोई कभी कभी ड्रम बम लेके आता है लोग। इट्स लाइक अ पार्टी, आई एम टेलिंग यू, बट ऐसा अभिषेक उतरता है और अभी उतरने वाला है। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अपने मुंह को दबा के मत रखो, खोल दो आज। ध्यान से सुने इस वक्त। Before he could receive this sight, he received insight. इसके पहले कि बर्तिमाई को अपनी दृष्टि या नजर मिलती, उसे अंदर की दृष्टि, अंदर का प्रकाश मिल गया था। सब जो बोले अंदर का प्रकाश। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोले अंदर का प्रकाश। अंदर का प्रकाश। इसीलिए मैं पहला वचन पर ध्यान देना चाहता हूं, ओके? मैं हमारे भी स्टूडेंट्स हैं, हमारी भी स्टडी होती है, बाइबल स्कूल है हमारा छोटा सा। We have a Bible school and we have students and disciples coming for the Bible study. तो वर्ड ऑफ गॉड बहुत जरूरी है। Establishing the word of God is very important. तुम्हारा अंदर का प्रकाश, अंदर का प्रकाश बहुत जरूरी है। The revelation of the word that you carry is तुम very, very लोग important. क्या कहते हैं, इसीलिए यीशु मसीह के पीछे मत चलो, ये कहता है इसीलिए यीशु मसीह के पीछे मत चलो, लेकिन अंदर का प्रकाश जब आप जानते हो कि ये प्रभु जो मैं इसके पीछे चल रहा हूँ ये सच्चा खुदा है, तो आप पीछे हटेंगे नहीं, पीछे हटेंगे नहीं। Amen. कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? You will not step back. अगर एक बार आपको पता लगे कि यीशु कौन है, तो आप पीछे कभी नहीं मुड़ेंगे। You will not step back. आप कभी पीछे हटेंगे No matter नहीं। what happens. चाहे फिर कुछ भी क्यों ना आए। This is what is called revelation. और इसे ही प्रकाश कहा जाता You है। see church, your revelation will cause you
to receive from God. और जो आपका वचन का प्रकाश है उसी से आप परमेश्वर से स्वीकार एक सकेंगे। एक दृष्टिकोण, एक रेवलेशन, एक प्रकटीकरण उस बार्तिमेयस की आंखें खोल दी। तो सोचिए ना, हमारे पास उससे भी बड़ा रेवलेशन है कि यीशु मसीह सिर्फ दाऊद की संतान नहीं, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर उद्धार करता है। आमेन, कितने लोग आमेन। बोल जोर से तालियों की आमेन, भाई, आमेन, कम ऑन, हालेलुया। हालेलुया। जब ये रेवलेशन उसकी आंखों को खोल सकता है, तो सोचिए कि हमको जो रेवलेशन आज है कि यीशु मसीह प्रभु है, ये रेवलेशन हमारे पास है, तो हमारे पास कितने बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं। Bartimaeus had only this revelation that Jesus is the Son of God, and still he received his miracle and he received his sight. We have a greater revelation that Jesus is not just the Son of God, but he is the Lord and Savior. How greatly will he work in our lives? Praise the Lord. Praise the Lord. इसी प्रकटीकरण के वजह से हम लोगों ने कैंसर चंगे हुए देखे हैं। लोग 18 साल जिसको बच्चे नहीं थे, जो लोग व्हील चेयर से बाहर निकले हैं, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। लोग कहते हैं कि ऐसा कैसा होता है? प्रकटीकरण से। सब जो बोले प्रकटीकरण से। Only आज through आप यहाँ पर revelation. आए हैं, आज आप यहाँ पर आए हैं, ये प्रकटीकरण समझना बहुत जरूरी है। सब जो बोलिए रेवलेशन, प्रकाश, वचन का प्रकाश। सब जो बोले प्रकाश। प्रकाश। I want you to understand this. मैं चाहता हूं कि आप ये The second समझें। thing, दूसरी बात, your revelation will cause you to receive. और जब आपको वचन का प्रकाश मिलता है तो आप प्रभु से ग्रहण कर पाएंगे। It will cause you to receive. और जब आपको वचन का प्रकाश मिलता है तो आप प्रभु से स्वीकार Many पाएंगे। of you will operate in the gifts of the Holy Spirit. आप में से बहुत से लोग पवित्र आत्मा के वरदान में काम कर पाएंगे। भविष्यवाणी के वचन में, भविष्यवाणी के वरदान में आप कार्य करने लगेंगे। You will be able to work in the gift of prophecy. Hallelujah. Hallelujah. आज से ये होगा। It will happen from अरे today. सर, आप हाथ नहीं उठा रहे, जिन्होंने हाथ उठाया आपके जीवन में हो ऐसा। Every time when you lift up your hands and say amen, you will receive it. सर, मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मुझे कोई दूसरा काम नहीं था, प्रभु ने मुझे यहाँ पर भेजा। God has sent me here. आज प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। God is going to work in your lives. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let's go to Mark. Let's go to Mark. Let me start slowly because I know some of you are very good. Okay? मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा क्योंकि आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। हाँ? Yeah. मुझे पता है। Mark chapter 5, please. मरकुस 5वां अध्याय। मैं अभी फर्स्ट गियर में भी हूँ, खाली सिर्फ हूँ। Okay? Mark chapter 5. मरकुस 5वां मैं अध्याय। सोच रहा हूँ गियर बदली करूँ, लेकिन वो मौका नहीं मिल रहा है। Okay? आएगा 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 आएगा। Team be in prayer. Okay? This is not for your entertainment. Okay? Pray. Mark chapter 5, please. मरकुस 5। Yes, can you read it, madam? Yeah. Mark chapter 5, verse 30. Yes. There was a lady, we all know, 12 years she had an issue of blood. We all know the story. और यहाँ पे हमें पता है उस स्त्री की कहानी जिसे 12 साल से लहू बहने का रोग था। We've heard it many times in church. और बहुत सी बार हमने ये कहानी कलीसिया में सुनी But है। now I want to bring something very important. पर मैं कुछ महत्वपूर्ण बात आपको बताना You चाहता हूँ। see, in that story, और उस कहानी में, this lady, in those times, और इस स्त्री ने उन she दिनों had में, a revelation उन दिनों में स्त्री के पास वो प्रकाश था। that women should not go where men are. और उसे ये चीज पता थी कि जहाँ पे पुरुष है वहाँ पे स्त्रियां नहीं This जा was the सकती। understanding. This was the idea. और ये उसकी समझ थी, ये वहाँ के लोगों की सोच थी। कितने लोग सुन रहे हैं? केरला में जब मैं जाता हूँ, okay? When I go to Kerala, Okay? स्त्रियां अभी भी यहाँ पर भी ऐसा है, लेकिन कोई कोई स्त्रियां बीच में इधर उधर बैठी हैं, ठीक है। लेकिन केरला में जो है, स्त्रियां एक जगह पर बैठती हैं और पुरुष एक जगह पर बैठते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? it's a usual practice in Kerala that Okay. ladies लेकिन will sit मुंबई में one ऐसा side. नहीं है। मुंबई में किधर भी कोई भी बैठता है, जहां पर स्त्री बैठे बेचारे पुरुष लोग बाजू में बैठ जाते, उठ के चले जाते हैं। ओके, लेडीज फर्स्ट। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? ओके, बेचारे पुरुष लोग मुंह ऐसा नीचे करके चले जाते हैं। पुरुष लोग सुन, उनको सीट पहले मिलती है। लेकिन ये जो उनका जो मानसिक, व्हाट डू यू कॉल दैट सोसाइटी नॉर्म, उनकी सोच थी, ये समाज की सोच थी कि जहां पर स्त्रियां जो है पुरुष के साथ नहीं जा सकती या आगे नहीं बढ़ सकती या किसी को कुछ कार्य नहीं कर सकती। बट दिस वुमन वाज डिफरेंट। और ये जो स्त्री थी बहुत ही हटके थी। लुक व्हाट शी सेड। देखिए वो क्या कहती हैं। Look what she said. देखिए वो क्या She कहती said, हैं। if I can touch the hem of his garment. और वो मन में ही कहती है कि सिर्फ मैं अगर यीशु के वस्त्र को छू सकूं। Hallelujah. हालेलुया। How did she get this revelation? और ये प्रकाश उसे कहाँ से मिला? How did she get this ये revelation? प्रकाश उसे कहाँ से मिला? I believe और मेरा विश्वास it है, was through the word of God. और ये यकीनन उसे वचन से मिला Please है। listen. ध्यान से In the सुनिए। book of Malachi it says, and the sun shall arise with with healing in his wings. और Son of मलाकी- righteousness shall arise with healing in his wings. और मलाकी के पुस्तक में लिखा है कि जो
धार्मिकता का सूरज है वो अपने पंखों में चंगाई लेकर उगेगा। Listen to me carefully. ध्यान से सुनिए। You see, in those days, the rabbis used to put the word of God on their hem of the skirt which they used to wear. और उन दिनों में जो रबी थे वो अपने वस्त्र के छोर में वचन लिखते थे। The skirt was there. On that they had the word of God. और उनका जो वस्त्र था उसके वस्त्र के छोर पे वचन लिखा जाता था। Those things were called the wings. और वो जो चीजें हैं वो जो वस्त्र का छोर है उसे पंख कहा जाता है। You see, this woman was not even touching his body. She was touching the word. और ये जो स्त्री है वो यीशु के शरीर को नहीं छू रही थी पर वो वचन को छू रही थी। सब बोले वचन को छू रही थी। Amen. You see, it is not the garment. He says the hem of his garment. वो You सिर्फ- see, that's where the word was. और वो सिर्फ वस्त्र को नहीं छू The रही थी, tassels. वो कहती है कि वस्त्र के छोर को छू रही थी क्योंकि उसे पता था कि छोर पे वचन लिखा है। What do you say in English, हिंदी? यहाँ पर ऐसे कोने पर जो है और कलाई पर- वचन यहाँ पर वचन ऐसे लिखते थे यहाँ पर। और- और she was not touching his body, she was not touching only his clothes, she was touching the word. और वो यीशु के सिर्फ शरीर को या उसके कपड़ों को नहीं छू रही थी पर वो बराबर वचन को छू रही थी। Hallelujah. हालेलुया। और यीशु मसीह जो है मुड़कर कहते हैं कि अरे किसने मुझे छुआ? And Jesus turns and says, who touched me? किसने मुझे छुआ? Who touched me? व्यारा में किसने मुझे छुआ? Who touched me in Vyara? और सारे व्यारा के लोग बोलने लगे, प्रभु हम लोग तो सुबह से नाच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन एक जन कहता है कि सिस्टर पर्सिस जॉन ने कहा था मूर्खों को प्रभु इस्तेमाल करेगा। Amen. ब्रदर वो मैं सुना, मैं ऐसा प्रभु की स्तुति करने लगा और मेरी जिंदगी बदल गई। Hallelujah, hallelujah. Amen. हेलो, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आप हाथ घर पे छोड़ के आए क्या? बजाओ यीशु के लिए, कम ऑन, हालेलुया। Hallelujah. सुनिए इस वक्त मैं आप जो बोल रहा हूं सुनिए इस वक्त, मुझे फाउंडेशन ले करने दो। ये कोई ब्लेस मी वाला संदेश नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप लोग वचन में बढ़ना है। I want you all to grow in the word of God. That is why I'm laying strong foundation. प्लीज लिसन। ध्यान से सुनिए। तो वो वचन को छूती है She touches the word of God. और प्रभु कहता है किसने मुझे छुआ? And then Jesus asks, who touched me? पतरस कहता है प्रभु इतने सारे लोग, उसके चेले कहते हैं प्रभु इतने सारे लोग कूद रहे, नाच रहे, तुझसे छू रहे, तुझको छू रहे, और तू बोल रहा है किसने छुआ? सुबह का नाश्ता ठीक था ना प्रभु? And his disciples tell him, so many people are thronging around you, so many people are touching you, and you're asking me, who touched me? सुबह के नाश्ता में कोई कमी थी क्या प्रभु? शक्कर नमक ज्यादा हुआ क्या? प्रभु कहता है हे मूर्ख, तुझे समझता नहीं है, जो व्यक्ति मेरे वचन को छूता है, मेरे वचन के अनुसार कार्य करता है, वो मुझे छूता है। Those who touch the word of God, obey the word of God, they have the right touch of faith to God. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त सुनिए, जब वचन आता है, सपोज सुनिए इस वक्त हम प्रभु को कैसे छू सकते हैं? प्रभु छू किधर है? सुनिए इस वक्त How can we touch God? कोई लोग जब ये वचन प्रचार किया जाता है ना, ये संदेश प्रचार किया, लोग ऐसे हाथ आगे करते हैं। People try सर to कभी कभी physically प्रभु touch आपके God. बाजू में खड़ा है, आप आगे हाथ कर रहे हैं। तो छूने का मतलब क्या है? जोर से बोले, छूने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अभी अगर प्रभु का वचन आता है कि नाचो, प्रभु का वचन आता है, सडनली एक वचन आता है कि प्रभु का नाचो, अभी ये जो वर्ड आया है नाचो, तो आप लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, बोले मैं कैसा नाच सकता हूं, मेरे समाज में मेरे दादा लोग नहीं नाचे, मैं कैसा नाच सकता हूं? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? हमारे बारे में हमारे परदादा लोग नाचते नहीं है, हाँ जो पागल लोग नाचते हैं। नहीं सर, अगर वचन कहता है नाचो तो हमको नाचना है। अगर वचन कहता है ताली बजाओ तो हमको ताली बजानी है। प्रेज द लॉर्ड। देखो सिस्टर लोग ऑलरेडी ताली बजा रहे हैं। नो सुनिए, अगर वचन कहता है कि प्रभु को दो तो क्या करना है? देना है। इससे प्रभु को छुआ जाता है। When you obey the word of God, you touch God. प्लीज ध्यान से सुने इस वक्त मैं क्या कह रहा हूं। प्रभु को छूने का मतलब क्या है? What do you mean by touching God? प्रभु को छूने का मतलब क्या है? Touching God is what? वचन को छूना है। वचन को बोला है कि प्रभु मैं तुझे सिर्फ ऐसे ही नहीं नाच रहा हूं। देखो सब लोग हाथ उठाते हैं, सब लोग ताली बजाते हैं, सब लोग नाचते हैं, सब लोग गाते हैं, सब लोग प्रचार सुनते हैं, तो अंतर क्या है? क्यों थोड़े लोग चेंज हो जाते हैं? क्यों थोड़े लोगों को आशीर्वाद मिलता है? क्योंकि कोई लोग सिर्फ दूसरा कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, वो कर रहा है इसलिए भीड़ कर रही है तो मैं कर रहा हूं, लेकिन कोई लोग जो है प्रकाशन से कर रहे हैं। Amen, amen. अभी आप समझ रहे हैं, आपकी बत्ती जल रही है। Now the gear is changing. और अब मैं गियर चेंज करूंगा, Praise the रफ्तार से बढ़ूंगा। Lord. Praise the Hallelujah. Lord. Yes. कितने लोग मैं चर्च क्यों जा रहे हो? अरे दूसरे लोग जा रहे हैं तो इसलिए मैं जा रहा हूं।
क्यों दे रहा है तू क्यों भेंट डाल रहा है? अरे सब लोग डाल रहे हैं इसलिए मैं सबसे छोटा नोट ढूंढ रहा हूं, डाल रहा हूं सीधा। कुछ तो डालना है भाई, इसीलिए डाल रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जो लोग चिल्ला रहे हालेलुया, तो भी मैं थोड़ी बहुत स्टाइल मार के वो चिल्ला रहा था हालेलुया। नहीं सर, वो लोग चिल्ला रहे हैं भीड़ की प्रकाशन से चिल्ला रहे हैं। मैं जो है भीड़ के प्रकाशन से नहीं चल रहा हूं, वचन के प्रकाशन से चल रहा हूं। नाउ यू आर क्लैपिंग। Amen. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Now you have got it. अब आपको वचन समझ में आया है। Praise the Lord. Praise the Lord. जोर से बोलिए, मैं भीड़ के प्रकाशन से नहीं चल रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा के प्रकाशन से चल रहा हूं। Amen. Amen. You see, when you walk with the revelation that God has given you, you'll be different. जब आप उस प्रकाश के सहारे चलेंगे जो परमेश्वर से सीधे आपको मिला है, तो आप बहुत ही अलग और हटके होंगे। उसने सीडी रिलीज की तो मैं भी सीडी रिलीज करूंगा, उसने किताब लिखी तो मैं भी किताब लिखूंगा। नहीं सर, नहीं। प्रभु के प्रकाशन से जब आप चलोगे तो प्रभु आपके लिए एक अलग मंच तैयार करेगा। Amen. 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 जोर से बजाओ, जोर से, जोर से। Hallelujah. हम लोग दूसरों के मंच को देखकर अपना मंच तैयार करते हैं, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारा मंच उसके मंच से कहीं बड़ा हो सकता है। Hallelujah. Hallelujah. Don't try to copy others. किसी और की नकल करने की Don't कोशिश get मत jealous by कीजिए looking at people. और लोगों को देखकर मन में जलन मत There's a रखिए competition. और स्पर्धा मत कीजिए। बोले वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी करूंगा, उसने ये मीटिंग रखी तो मैं भी मीटिंग रखूंगा। नहीं सर, तुम भीड़ के प्रकाशन से नहीं चलोगे। जोर से अपने हाथों को उठाकर बोलिए, ये सुबह का मैसेज है, भीड़ के प्रकाशन से नहीं चलोगे। जोर से बोले, मैं भीड़ के प्रकाशन से नहीं चलूंगा, मैं भीड़ के प्रकाशन से नहीं मैं चलूंगा, पवित्र आत्मा का प्रकाश मैं पवित्र आत्मा का प्रकाश से चलूंगा। से चलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 यस। अगर आप धूम्रपान करते हो, ब्रदर हमारे गांव में सब लोग धूम्रपान करते हैं, चर्च में जाते हैं। अरे वो लोग धूम्रपान करते हैं, चर्च में जाते हैं, लेकिन वचन क्या कहता है? आप भीड़ के प्रकाशन से मत चलो, आप प्रभु के वचन के प्रकाशन से चलो। आमेन, आमेन, आमेन। सब छूट जाएगा। Is this blessing you? क्या आप आशीर्वादित हो रहे हैं? Is this blessing you, क्या ये church? वचन आपको आशीष दे रहा है? Hallelujah. हालेलुया। It's going to change. और ये वचन आपको You will बदलेगा। not walk with the traditions of this and one, that one. You will walk with the fresh revelation of आप God. लोगों की परंपराओं के रीतियों के रिवाज से नहीं चलेंगे, पर वचन के प्रकाश से चलेंगे। That's what will cause you to receive. और यही वचन के प्रकाश से आप प्रभु से स्वीकार पाएंगे। This is why the woman received. और इसी वजह से इस स्त्री को अपना चमत्कार मिला। कभी कभी सोचा कि कितने सारे लोग चर्च में जाते हैं, सिर्फ 2-3 गवाही आती है, अब ब्रदर मैं जो ऐसा हुआ। अब सोचते हैं यार ये इसको तो मैंने लेकर आया था मेरे साथ, ये स्टेज पर गई और मैं पिछले 7 साल से आ रहा हूं, मैं अभी तक स्टेज पे नहीं गया। ऐसा हुआ है कि नहीं? अरे हुआ कि नहीं भाई लोग? Have you ever छोड़ो thought- यार तुम लोग बहन लोगों ने सुनिए इस वक्त, कितनी बार होता है कि तुमने किसी अपने दोस्त को, मित्र को अपने लेकर आया है चर्च में, और तुम 3, 4, 5 साल 7 साल से आ रहे हो, और उसको तुमने जस्ट लेकर आया, वो आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन उसको लेकर आया और उसको प्रभु ने छुआ। कितने बार हुआ ऐसा? हाथ उठाइए। अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को अपने लेकर आया, उसको जस्ट बोले चल देखते हैं ना चर्च में जाके, और उसको रोने लगती है, ऐसे हिलने लगती है, डुलने लगती है, और उसको कुछ होता है और वो अगले संडे गवाही देती है। अरे आमेन, आपका बहुत फीका है यार। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ऐसा होता है? Why does this happen? मैं तो चर्च में ताली बजाता हूं, मैं तो चर्च के क्वायर में हूं, गाता हूं, नाचता हूं, वॉलंटियर हूं, सब कुछ हूं, लेकिन मेरे अंदर क्यों नहीं कार्य होता है? आज के बाद आपके अंदर कार्य होगा। From today God is going to work बजाओ in जोर your से, life. जोर से, जोर से। Hallelujah, hallelujah. क्योंकि आप भीड़ के रेवलेशन से प्रकाश से चल रहे हो। वो व्यक्ति पहली बार सुनता है और बोलता है यार ये तो सही है, ये जो बोल रही सही है, ये तो कभी मैंने सुना नहीं, ये तो मैं ग्रहण करता हूं। बूम, प्रभु कार्य करता है उसके में। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अब तो सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? Today, open your heart to God. That is the secret to receive from God. और आज प्रभु के लिए अपना मन खोलिए, क्योंकि प्रभु से पाने का राज यही This is है। the secret to receive from God. और प्रभु से पाने का राज यही है। Praise the Lord. Praise the Lord. जोर से praise the Lord. Praise the Lord. आज थोड़ा धीमी आवाज में मत बोलिए। इतना अच्छा ग्राउंड है, इतना अच्छा तुम्हारे पास मैदान है, बहुत ब्यूटीफुल है। प्रभु कार्य कर रहा है इस वक्त। Amen. Amen. तो दूसरी बात
कि according to the revelation you will receive. और जो आपको प्रकाश मिला है उसी अनुसार आपको मिलेगा। You will receive आपको according to your revelation. और आपके चमत्कार और आपके आशीष उसी अनुसार होंगे जितना आपके पास वचन का The प्रकाश होगा। effectiveness of your service will be according to your revelation. आपकी सेवा का जो असर है वो आपके प्रकाश पर आधारित है। ध्यान से सुने इस वक्त। आप बोल रहे हैं ना, प्रभु मेरा चर्च बढ़ा, मेरा मेरा प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कुछ कार्य कर। सुनिए इस वक्त, आपका जो प्रकाशन होगा ना उसके अनुसार आपके कार्य होंगे। आमीन। आपने देखा किसी किसी के प्रभु किसी को यूज करता है, सिंपल आदमी को यूज करता है, एकदम फैलाता है उसके काम, और तुम बोल रहे हो अरे मैं भी उसी प्रभु की सेवा कर रहा हूं, मैं भी यीशु मसीह का वचन प्रचार करता हूं, उसका क्यों फैल रहा है, मेरा क्यों रुका हुआ है। और हम लोग कुछ कुछ बोलते हैं, नहीं वहां पे दुष्ट आत्मा नहीं, यहां पर दुष्ट आत्मा है, वहां पर ओपन है, यहां पर क्लोज्ड है। ऐसा कुछ नहीं है, उसके प्रकाशन के वजह से वो बढ़ रहा है। It is because of his revelation that he is growing. सर आपके पास 10 वॉट का मोमबत्ती है, 10 वॉट का लाइट है तो 1 ही मीटर में गिरता है। उसके पास 1000 वॉट का लाइट है तो वो 100 मीटर में गिरता है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं इस वक्त? अरे सर आपकी बत्ती चमक रही है इस वक्त। जितना आपका प्रकाश तेजोमय होगा उतना प्रकाश फैलेगा। आपका David says, दाऊद कहता है your word is a lamp. तेरा वचन दिया है लाइट और प्रकाश है। लाइट कितना रेवलेशन, आपका दिया का प्रकाशन का दायरा क्या है? Or are you understanding me what I'm saying? क्या आपको समझ में आ रहा है कि Please, I आपका cannot प्रकाश speak कहाँ तक simple गिरता है? things. I want to speak something which is deep. मैं आसान चीजें नहीं बोलना चाहता हूँ पर गहरी बातें आप पर खोलना चाहता मैं हूँ। मैंगलोर का रहने वाला हूँ। हमारे डैडी जो है खेत वाले हैं, किसान लोग हैं। तो हम लोग जब रात को जाते थे तो हमारे पास एक टॉर्च होता था। कितने लोग समझ रहे मैं क्या कहता हूँ? टॉर्च, छोटा सा टॉर्च होता था, उसमें 2 बैटरी लगते थे, एवर रेडी। यहां पर है क्या एवर रेडी? है ना, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, सुनिए इस वक्त। ओके, तो 2 टॉर्च मेरे डैडी डालते थे और हम डैडी के पीछे चलते थे क्योंकि वहां पर सांप वाप होते थे। यहां पर है? ओके, सुनिए इस वक्त। तो वो टॉर्च जो है छोटा सा टॉर्च होता था। मेरे डैडी बेचारे बहुत गरीब थे, ओके, लेकिन हमको अच्छा पढ़ाई लिखाई दिया उन्होंने। और वो टॉर्च तो था इतने से ही दायरे में गिरता था क्योंकि छोटा सा टॉर्च था, हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे उस समय। छोटा सा टॉर्च था और वो एक 5 मीटर के क्योंकि इतना घना जंगल होता था, इतना अंधकार होता था, सिर्फ 5 मीटर पे। लेकिन मेरे अंकल एक बार जो है कुवैत से आए थे, उन्होंने इतना बड़ा वो सिल्वर कलर का टॉर्च, प्रेज द लॉर्ड, हेलो, ए बोलो ना जोर से। देखो आप लोग हंस रहे हैं, आपके पास वो जरूर टॉर्च होगा। ये पहला वर्ड ऑफ नॉलेज है आज। Praise the Lord. Give me some time. We'll change gears. We are in the second gear now. अब हम दूसरे गियर में गाड़ी चला रहे दूसरे हैं। सेकंड गियर में आ गई गाड़ी, ओके? नहीं सच बोल रहा हूँ, सुनिए इस वक्त, आप खुद को मालूम है। तो अंकल ने क्या किया, वो टॉर्च, बड़ा टॉर्च, सिल्वर टॉर्च दिया, उसमें 4-5 बैटरी लगते थे, इतना बड़ा था। और जब चालू किया ऐसा लगता कि गाड़ी चलोगे, अरे 15 मीटर तक। कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड। उसी को कहते हैं प्रकाशन। आपका प्रकाशन कितना है उसके अनुसार आप पाओगे, उसके अनुसार आपका इन्फ्लुएंस, आपका विस्तार होगा। आपका प्रभाव, आपका असर उतना ही होगा जितना आपका I प्रकाश like है। this, प्रभाव, जोर से बोलिए प्रभाव। प्रभाव। Your influence will grow and in according to your revelation. और आपका प्रभाव उतना ही बढ़ेगा जितना आपका प्रकाश बढ़ता That's है। why you need that revelation और of God. इसीलिए वचन का प्रकाश होना, प्रभु का प्रकाश होना बहुत जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। सुनिए इस वक्त हमारे जो भाई सैम है, ओके, पास्टर सैम, हमारे जो पास्टर सैम हैं, okay, you know he carries a revelation of fasting. और वो Is it not, pastor? और उनके पास उपवास को लेकर बहुत Tell अच्छा me I'm wrong. प्रकाशन है। Tell me I'm wrong. No. Some of you, Sister Persis carries a revelation of worship. और सिस्टर जो पर्सिस है उन्हें आराधना Who का else? अलग ही प्रकाशन है। So each one of them has a revelation. और हम में से हर एक को वचन का किसी न किसी चीज का लेकर और प्रकाशन उसके है। वजह से, पास्टर साहब सुनिए इस पर, उसके वजह से आपकी मिनिस्ट्री का विस्तार हो रहा है। And because of this revelation, your ministry is growing. कल हम लोग गाड़ी में थे, सब कुछ नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा बोलूंगा, मैं डिटेल में नहीं बोलूंगा, ओके? सुनिए इस वक्त हम लोग कल गाड़ी में थे, गाड़ी में ड्राइव कर रहे थे और पास्टर साहब मेरे से बात कर रहे थे। And pastor told me, और पास्टर साहब ने कहा कि एक चुनौती, हम लोग लंच डिनर के लिए गए थे। थैंक यू पास्टर्स, आप लोगों ने अच्छा डिनर करवाया हम लोगों को।
Thank you so much for थैंक the यू सो मच, wonderful रियली dinner. अप्रिशिएट। तो हम लोग जब बात कर रहे तो पास्टर सामने बोला, पास्टर जी हमारे पास एक चुनौती आई, तो मैं सुन रहा था, ध्यान से सुन रहा था, जो वो बोल रहा नहीं सुन रहा था, लेकिन वो बोलने के पीछे जो है वो सुन रहा था। ध्यान से सुने, बोले बहुत बड़ी चुनौती थी, हम हाथों से, हमारे कार्यों से, हमारी शक्ति से नहीं कर पाए, इसीलिए मैं 21 दिन के उपवास में गया। And प्रभु ने pastor- मुझसे इमीडिएटली कहा, देख बेटा, इसके पास एक उपवास का रेवलेशन है। सब बोलिए उपवास का प्रकटीकरण। The revelation of fasting. कोई को लोग जो है उपवास, जब दुष्ट आत्मा या चुनौती आती है तो वो रोने का रेवलेशन है उनके पास। And there are people when challenges are coming in their lives, they'll just cry because they have the revelation of बाजी crying. वाले को बोलो शायद ये रेवलेशन आपके पास नहीं होना चाहिए। रोने का रेवलेशन, कुछ नहीं करते, रोते रहते हैं। किसी किसी के पास चर्च बदली करने का रेवलेशन होता है। बोले इधर मेरा काम नहीं हो रहा है, चलो दूसरे चर्च में जाते हैं, वहां पर कुछ हो रहा है, वहां के पास्टर साहब जो है उधर तो हाथ रखते हैं, उधर बैठ जाते हैं सीधा ऊपर। सब चर्च में हाथ रखते हैं भैया, आप इधर उधर भाग रहे हो। नहीं चलो चर्च बदली करते हैं, देखिएगा क्या होता है। कोई कोई चर्च आने का बंद करने का रेवलेशन होता है, बाइबल फेंक देते हैं, बाइबल बंद करते हैं। तो ये तुम्हारा रेवलेशन है। लेकिन साहब के पास जो है बोले चलो इतना बड़ा कार्य है, मेरे हाथों से नहीं होगा, चलो मैं 21 दिन का उपवास करता हूं। 21 दिन तक इन्होंने एक भोजन खाया होगा, करेक्ट पास्टर? और वो कहते हैं कि 21 दिनों के बाद जो कार्य इनसे नहीं हो रहा था वो होने लगा। Hallelujah. Hallelujah. Come on somebody, hallelujah. Hallelujah. आपके पास क्या प्रकाशन है? What revelation do you have? आपके पास क्या प्रकाशन है? What revelation do you वो have? स्त्री के पास एक प्रकाशन था, अगर मैं सिर्फ इस यीशु के वस्त्र को छू सकती हूं तो मेरी 12 साल की बीमारी चंगी हो जाएगी। This lady had a revelation that if only I could touch the hem of his garment, my sickness will be healed. हालेलुया, Hallelujah. जोर से बोलिए हालेलुया। Hallelujah. सुनिए, इस वक्त एक बार मैं क्रूसेड में जा रहा था, And I was going in a crusade. इन हरियाणा में हमारी क्रूसेड थी। ध्यान से सुने इस वक्त, And the ये तो छोटी है। अब ओम प्रकाश भाई से पूछ सकते हैं, एक स्टेडियम उन्होंने बुक किया था, They had booked a very big स्टेडियम बुक stadium. किया था, और कम से कम पहले दिन जो थे 4-5 हजार लोग थे। इज दैट राइट ओम प्रकाश? 4-5 बड़ा, वहां से लेकर ऐसा पूरा सर्कुलर हॉकी स्टेडियम था। Around 4,000 to 5,000 people had come on the first day of तो the पहले दिन conference. प्रभु ने कार्य किया। God worked mightily on अभी the सुनो first इसको। day. दूसरे दिन Second day, पास्टर लोग ने बोले, पास्टर साहब लोग आएंगे तो 8,000 भीड़ हो जाएगी, बाहर भी लोगों को हम लोग चेयर कुर्सियां तो थी नहीं वहां पर, लोग नीचे बैठ रहे थे बेचारे लोग, और 8,000 गचा गच। प्रभु वॉलंटियर्स को जाने का जगह नहीं है। लेकिन सुने इस वक्त क्या हुआ, क्या प्रकटीकरण था उसके पीछे। what was the revelation behind that? पास्टर लोगों ने कहा, पास्टर आप नाश्ता करोगे? मैं बोला नहीं। बोले खाना खाओगे? बोला नहीं। बोले करोगे क्या? मैं बोला शाम को बताऊंगा। नहीं सच सुनी। बोले सर आप थोड़ा सा घूमेंगे, हरियाणा में गार्डन है, ये है। बोले आप देख लो। बोले आप इतने दूर से आए, कुछ तो देखो। बोले सिर्फ मैं प्रभु का चेहरा देना। उस दिन मैंने प्रभु के साथ 8 घंटे बिताए। कितने घंटे बिताए? I spent 8 hours in the presence of ए, the Lord. कितने घंटे? 8 मैं क्यों घंटे. बताना चाहता हूं आपको, ये बताना चाहता हूं क्योंकि आपके पास एक प्रकटीकरण होना चाहिए। 8 घंटे लगातार मैं प्रभु की उपस्थिति में था। जब वो नीचे होटल में आए तब मैंने स्नान किया, 15-20 मिनट में तैयार हुआ, भाग गया मैं। सुनिए इस वक्त प्रकटीकरण, प्रार्थना का प्रकटीकरण, जो से बोले प्रार्थना का प्रकटीकरण। Revelation of prayer. आप लोग ने देखा कोई कोई जो माँ लोग होती है, कोई कोई लोग स्त्रियां जो होती है, कुछ भी हो जाए वो लोग पहले प्रभु 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 करते हैं। उनके पास प्रार्थना का प्रकटीकरण है। Mothers usually have the revelation ये of बहन जो prayer. ट्रांसलेट कर रही है ना, क्यों खड़ी है पता है? क्योंकि इनके माँ के पास एक प्रार्थना का प्रकटीकरण था। ये बहन जो थी विश्वास में नहीं थी, 2 सालों से ये विश्वास में प्रभु को टाल रही थी, प्रभु को क्या नहीं कह रही थी। लेकिन माँ जो थी लगातार प्रार्थना कर रही थी, लगातार प्रार्थना कर रही थी। एक दिन ये घुटने पे जाती और बोलती है मैं यीशु को स्वीकार करती हूँ। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. उस दिन क्या हुआ बताता हूं मैं। आपके प्रकटीकरण के अनुसार आपके कार्य होंगे। सर, मैडम, आपके पास कौन सा प्रकटीकरण है? What revelation do you carry? क्या प्रकटीकरण है आपके What पास? revelation do you ऐसा carry? कौन सा वचन है जो कह सकते हैं कि ये वचन मेरा है? Which word of God touches you and you say that this word of God is for me? ये आपके लिए एक वर्ड है। सुनिए, बाइबल में बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे आयतें हैं।
ऐसा कौन सा आयत है जो आप बोल सकते हैं कि प्रभु ये आयत मेरी है? For which verse in the Bible you can say that this verse is ठोक for के me? कह सकते हो ये आयत मेरी है, प्रभु मुझसे मेरे लिए ही लिखा है ये वर्ड। अगर नहीं है ना तो आज से वचन ऐसा पढ़ने लगो, वैसा पढ़ने लगो और बोलो प्रभु मुझे मेरी आयत दे। Amen. 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 किसी ने रिसीव किया? अभी गियर चेंज हो रहा है। सर मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुने। इस वक्त आप गरीब हो सकते हैं लेकिन आप बेवकूफ नहीं हो सर, इसीलिए तो आप इतनी दूर आए हैं, अपना समय निकालकर पैसा खर्च कर कर आए हो, आप बेवकूफ नहीं है। आज पूरे दिन, कल पूरे दिन वचन में घुसो। बोले हम लोग बाद में खेलेंगे, बाद में गप्पा करेंगे, वचन में बोले शकारापा, प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मुझसे बात कर। ऐसा लोगों से मत कहो मैंने ना 15 आयत पढ़े। अरे जा, 15 आयत से पढ़ने से कुछ नहीं होता, लेकिन वो जो एक वचन Amen. तुम्हारी आत्मा में घुस जाएगा तो फिर वो 15 हो या 50 हो या 1 हो, वो वचन तुम्हारा वचन बन जाता है। Amen. Amen. Now the gear has changed. Now the gear has changed. और अब मैंने Somebody shout a hallelujah. कोई तो कहे हालेलुया। अपने मुंह को खोलिए, बोले हालेलुया। मुंह खोल कर कहिए हालेलुया। सुन रहे हो इस वक्त? उस दिन सुनिए इस वक्त, उस दिन जब मैं क्रूसेड में गया, And that day when I went to the crusade, उस दिन जब क्रूसेड में गया, when I prayed for 8 hours and went to the crusade, ध्यान से सुने इस वक्त, मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं, जोर से बोले प्रोत्साहित कर रहा हूं, एनकरेज कर रहा हूं। मैं आपको प्रोत्साहित कर रहा डिंग हूँ। नहीं मार रहा हूं सर, एनकरेज कर रहा हूं। I'm not trying to show off. I'm trying to encourage you all. उस दिन एक लड़का था, सॉरी देयर वाज अ मैन, इज नॉट अ लड़का, इट वाज अ मैन। एक व्यक्ति उस दिन आया, एक पुरुष था He had a daughter और ये एक बेटी थी who had fallen from the first floor, और वो पहले मछली से नीचे गिर and गई the word of knowledge came. और ज्ञान का शब्द आया There is a man over here, your daughter cannot walk. और मैं वहाँ पे बोलने लगा कि यहाँ पे एक ऐसा पुरुष है जिसकी बेटी चल नहीं सकती, Put your daughter down. और अपनी बेटी को नीचे रख, Put your daughter down. अपनी बेटी को नीचे बिठा। और वो आदमी ने उस वचन को ग्रहण किया। वो गोद में लेकर था क्योंकि बेचारी उसके पैर ऐसे ढीले लिम्प थे, उसके पैर, और उसके पैर लटक रहे थे, वो लंगड़ी थी, चल नहीं पा रही थी because she had fallen from the first floor. क्योंकि वो पहले मछली से नीचे She was गिरी only थी। 3 years old. और वो सिर्फ 3 साल की थी, 3.5 years. 3 साढ़े 3 साल की, And she keeps her on the ground. और वो अपनी बेटी को नीचे जमीन पर उसने रखा Suddenly, और अचानक She से said, Papa, और उसने कहा पापा मैं चल सकती हूँ। आमेन, आई कैन वॉक। That crowd went mad. और वो भीड़ पागल हो The गई crowd went mad. और वहाँ की भीड़ Because this man was a known person. क्योंकि ये जो व्यक्ति था बहुत ही मशहूर था। You know, after the meeting क्या कर रहे थे वो लोग? अपने जो बुजुर्ग लोग थे उनको स्टेज पे सब फेंक रहे थे। ओम प्रकाश से पूछो, फेंक रहे थे। मैं बोला क्या कर रहे हो, फेंक क्यों रहे हो लोगों को स्टेज पर? बोलते सर प्रभु ही कर सकता है, हम चाहते हैं कि हमारे लोग ठीक हो जाएं। आमेन। सुनिए सर, आपके पास कौन सा प्रकटीकरण है? What revelation do you Pastors, what carry? revelation do you have? पास्टर्स आप कौन सा प्रकाश लेकर Is it चलते हैं? revelation about giving? ध्यान से सुने सर, क्या देने का प्रकाशन आपके मैं बहुत पास छोटे है? परिवार से आता हूं, मेरे पास डिंग मारने के लिए कुछ नहीं है। I come from a very small family. आपके पास कौन सा देने का रेवलेशन है? Do you carry the revelation of giving? एक प्रभु के दास हैं पूना में, उनका नाम पीटर सिल्वे है। And there's a man of God in Pune. His name is Peter Silve. जब उनकी सेवकाएं शुरू हो रही थी When he started his ministry, तो भेंट, एक प्रभु के बहुत बड़े भविष्य वक्ता है, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, a mighty तो उन्होंने prophet बोला of कि God had चलो come. हम लोग एक प्रभु का भवन बांध रहे हैं, आप बोए। And he तो said उसने that, कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। उसकी बीवी बेचारी बाजू में बैठी थी, नहीं शादी हो गई थी उनकी। उसने बोला जयश्री मैं मेरी वेडिंग रिंग डाल देता हूं। तो उसने बोला डाल दो आप। आज उनका चर्च में 25,000 लोग हैं। their church has 25,000 members. 25,000 लोग। सर आपके पास कौन सा प्रकटीकरण है? What revelation do कौन you सा carry? ऐसा वचन है जिससे आप ठोक कर, कीला ठोक कर कह सकते हो ये मेरा वचन है? Which जब भी rhema मैं इस word of- वचन को पुकारता हूं प्रभु मुझसे Yes. कार्य करता है। Amen. Amen. A revelation एक प्रकाशन, will change your influence. एक वचन का प्रकाशन आपके प्रभाव Will को cause बदल you to देगा receive. और वो प्रकाशन से आपको प्रभु से मिलेगा। Are you listening, church? क्या आप सुन रहे हैं कलीसिया? कितने लोगों को
ये वचन ब्लेस हो रहा है। How many of you are आज blessed? learning लंच the टाइम word? में वचन को सिर्फ खाना मत खाओ, खा लो आप लोग प्लीज खाना। मैं नहीं बोल रहा हूं उपवास करो ये करो, बोले सर पहले ही दिन बोलते हैं उपवास करने को। मैं सोचा मस्त हाथ मारूंगा आज मैं। पास्टर्स लोग जब स्माइल करने का समझ, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है भाई लोग। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इसीलिए पौलुस ने क्या प्रार्थना की मालूम है? वो व्यारा में गया था, वो एफिशियंस में गया था। पौलुस इफिसियों की कलीसिया में गया क्यों था। व्यारा में नहीं आ सकता क्या प्रभु? आया आ है गया भाई, है, आ सकता है ना, आमेन, आया है। यस म्यूजिशियंस प्लीज बी रेडी, या जस्ट बी रेडी, Choir, please आप स्टेज पर आइए। या सिर्फ रेडी हो जाइए। या सुनिए इस वक्त, one day Paul went to Ephesians. और एक दिन pray. पौलुस इफिसियों में गया Ephesians, you went to the church of Ephesians, और वो इफिसियों की कलीसिया में गया and there the people were so modern. और वहाँ के लोग बहुत ही मॉडर्न थे। मॉडर्न थे, अरे क्या बात करते थे वो लोग, व्यारा जैसे लोग थे वो लोग। हमने सोचा व्यारा में छोटा सा गांव है, लेकिन जब खिड़की खोल के देखी तो वहां पर बिल्डिंग है। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूँ सर। हमारे मुंबई में सोचते हैं व्यारा मतलब एक ना गांव देहात। मेरी बीवी भी बोलती थी बेचारी, बोलते गांव है क्या? मैं बोला गांव नहीं है छोकरी। आई लाइक टू जोक विद माय वाइफ। मुझे मेरी बीवी के साथ मजाक करना अच्छा लगता है। प्रेज द लॉर्ड, माय चर्च नोस। मेरी कलीसिया जानती है। आर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे आई हैं सेड लेडी, दिस इज नॉट अ विलेज, दिस इज अ सिटी। कि व्यारा कोई छोटा गांव नहीं है, पर It's एक got शहर buildings. है। परमेश्वर, और इस शहर में ऊंची ऊंची इमारतें It's got हैं roads. और यहाँ पे अच्छे रास्ते हैं। और लेडीज तो जानते हो, तो मुझे क्यों नहीं लेके गए आप फिर? ये लेडीज का पहला डायलॉग होता है। पहला वो आना नहीं चाहते हैं, बोलते नहीं इतना दूर है, इतना गर्मी है, ये है वो है, गांव है। और जब उनको फोटो भेजो, थोड़ा सा वीडियो दिखाओ, बोलते पहले हम ऐसे ही करते हो आप, मुझे लेके नहीं जाते आप लोग। लेकिन हेलो, प्रेज द लॉर्ड, आई वांट टू कनेक्ट विद यू चर्च। और मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, आपसे want बातचीत to करना connect with चाहता you. हूँ, आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस जो है एफिशियंस की कलीसिया में जाते हैं। ध्यान से सुने इस वक्त, उधर मत देखे, उनको पहले भी बाद में भी देख सकते हैं आप लोग, कि बाद में हाथ मिला फोटो खींचो। अभी इधर देखो, पौलुस जो है एफिशियंस के कलीसिया में जाता है। उनकी बहुत सारी जरूरतें थी। They had many needs. बोले सर हमको जगह चाहिए, हमको चर्च बांधना है, हमको गाड़ी चाहिए, हमको साड़ी चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, बहुत सारी जरूरतें थी। लेकिन पौलुस ने कहा बेटा तुम्हारी जरूरत से सबसे पहली जरूरत जो है उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। खोलो एफिशियंस का पहला पत्र। आइए हम खोले इफिसियों की ओपन पत्री। योर बाइबल नाउ, दिस इज यू शुड प्रे एवरी डे। और ये प्रार्थना आपको हर रोज करनी चाहिए। इफिसियों की किताब पहला अध्याय। मैं एक प्रभु के भविष्यवक्ता अफ्रीका में मिला, उनसे हम लोग मिलने गए थे। उसकी कलीसिया में 1 लाख लोग हैं। कितने लोग हैं? 1 लाख। सिर्फ बोलो ना, सिर्फ। अरे जोरात मन। जोर से बोलिए। किती लोक महाराष्ट्रावरून आले? मराठी समजते का तुम्हाला? तर तुम्ही जोरात म्हणायचं मग। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे कोई महाराष्ट्र वाले हैं? नहीं। सुनिए इस वक्त एफिशियंस फर्स्ट, इफिसियों की किताब पहला एफिशियंस अध्याय। 1। लेट्स गो क्विकली ओवर देयर एंड वी क्लोज। आइए हम वचन पढ़े, हरी अप, देन वी प्रे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। लुक व्हाट ही सेज। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। यस, कैन यू रीड इट हिंदी पास्टर? इफिसियों की किताब पहला 18वीं आयत। Yes. और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो। तुम्हारे मन की आंखें क्या हो? ज्योतिमय हो। ज्योतिमय हो। पौलुस, मैं सोचा था आप एक हमारे जगह के लिए प्रार्थना करोगे, हमको चर्च बिल्डिंग के लिए प्रार्थना करोगे। पौलुस कहता है नहीं, पहले ही अध्याय में लिखता है वो। सब जो मेरे साथ बोलिए प्रभु। प्रभु। जोर से जोरात पढ़ा, सुनो सब लोग। प्रभु, प्रभु मेरी क्या? मन की आंखों को ज्योतिमय कर। सब ने बोले प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मेरे मन की आंखों को, मेरे मन की आंखों को ज्योतिमय करना। ज्योतिमय करना। इंग्लिश में लिखा है गॉड ऑफ आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, Enlighten the eyes of my God and Father of our Lord Jesus Christ, I pray that you may enlighten the eyes of my understanding. Eyes of my understanding. सब जो बोलो आत्मिक आंखें। आत्मिक आंखें। नहीं, जो पीछे बैठे हैं जोर से सिर्फ पीछे वाले लोग बोले आत्मिक आंखें। आत्मिक आंखें। वो लोग सुन रहे, भाई लोग आप लोग आगे होना चाहिए। ये आगे वाले थोड़े नाराज हैं। फिर से जो पीछे बहन बैठी है, जो लोग दूर बैठी हैं, गुजरात के बॉर्डर पे बैठी हैं,
वो लोग बोलिए आत्मिक आंखें। आत्मिक आंखें। नहीं, आप लोग ने सिर्फ वो लोग बॉर्डर वाली बहनें जोर से बोलिए आत्मिक आंखें। हाँ, सोना नहीं है, मैं पास्टर हूं, सब पर नजर है मेरी। पौलुस जो है कहता है सबसे पहले प्रार्थना करते हैं, प्रभु इनकी आत्मिक आंखों को खोलना। आज हम लोग प्रार्थना करेंगे, पहली प्रार्थना हमारी क्या खोलना? आत्मिक आंखों को खोलना। आत्मिक आंखों को खोलना, क्योंकि आत्मिक आंखों को खोलेंगे ना, आप ऐसे चीजों को देखोगे जो आपके सामने जो कुआं था आप नहीं देखा, लेकिन जब आत्मिक आंखों खोलने के बाद आपको कुआं नजर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? बाइबल कहता है उत्पत्ति, जेनेसिस में, इज दैट राइट? जेनेसिस, या इन द बुक ऑफ जेनेसिस। और उत्पत्ति की किताब में लिखा देखो ये है, सब लाइव आ रहा है अभी, और ये सीधे पवित्र आत्मा अभी वचन दे रहा है। Hagar and her son was dying. और हगार और उसका बेटा मर रहे थे। They were dying. वो मरने के कगार पर थे। वो मरने के कगार पर थे। People had rejected them. और सभी लोगों ने उन्हें धिक्कार लिया था। It was finished. It was game over. और उनकी कहानी खत्म हो गई थी। Then the Bible says, और फिर बाइबल कहती है God opened the eyes of Hagar. कि परमेश्वर ने हगार की आंखों को खोला। अपने नाम को लेकर बोल, परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोल दिया। अपने नाम को लेकर बोल। अपना नाम लेकर कहिए कि परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली। देखो ये लोग सब मुंह बंद है तुम्हारा, खुद का नाम नहीं मालूम इनको। अपना नाम लेकर कहिए कि परमेश्वर ने पीना की आंखों को खोला। जोर से अपना नाम लीजिए पहला, ओके? मुझे मत बताइए, जोर से अपना नाम लीजिए। 1 2 गो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। बिगिन टू प्रे, बिगिन टू प्रे। यस, बोलिए प्रभु ने उसकी आंखें खोल दी। अपना नाम लेकर कहिए कि प्रभु ने मेरी आंखें खोली। हेगार की आंखें खोली। सुनिए, हेगार की आंखें खुल गई और उन्होंने ऐसी वस्तु देखी जो उसके सामने ही थी, लेकिन उन्होंने पहले नहीं देखी। सब जो बोलिए कुआं था वहां पर। The well was there. It was there. वो कुआं वहां पर It was there. It was a spiritual well. और वो आत्मिक कुआं था। ऐसी चीजें आपके सामने प्रभु ने तैयार की है सर, हालेलुया। आपके सामने है, लेकिन शैतान ने उसे छुपा दिया है। लेकिन जब आपकी आत्मिक आंखें खुलेगी, वो चीजें आपको दिखाई देंगी। आमेन, 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 आमेन। और आप जो गिव अप करने वाले थे, आप जो हार मानने वाले थे, आप जो पीछे हटने वाले थे, आज के बाद आप पीछे नहीं हटेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस। नहीं, मैं आप कभी पीछे नहीं हटेंगे यीशु के नाम में। वो छिपा हुआ धन आपके हाथों में आने वाला है। हालेलुया। The hidden It's treasures going to are come in your hands. in your hands, pastors. और ये छुपा हुआ धन आपके हाथों में I आएगा। prophesied this will happen. और ये भविष्यवाणी मैंने दी है, ये That's होगा। what Paul said. और इसलिए पौलुस ने कहा What you not need is not a land. कि- What you need is a opening of the eyes. कि तुम्हें जमीन जायदाद की जरूरत नहीं है, पर जरूरी है कि तुम्हारे मन की आंखें रोशन हो। जमीन जायदाद आएगी सर, जमीन जायदाद आने चाहिए। बाजू वाले को बोलो तेरी जमीन आ रही है, आमीन, आमीन। तेरा घर आ रहा है, तेरी गाड़ी आ रही है। ये सब चीजें जरूरी है। अब उड़कर नहीं आए सर, किसी की गाड़ी में आए आप, तो ज्यादा सुपर स्पिरिचुअल मत बनो, प्रैक्टिकल रहो। आज मैं कितना भी आत्मिक हूं, लेकिन साहब ने मुझे गाड़ी में लेकर आया, थैंक यू पास्टर्स। लेकिन जब हमारी आत्मिक आंखें खुलती है सर, ये सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी। Amen, amen, amen. When your spiritual eyes are open, your natural needs will be fulfilled. हम गाए हो ज़ैना तू राजा। बैठे रहो, बैठे रहो। तेरी कोई को लोग गाने के लिए गा रहे हैं, कोई को लोग प्रकाशन से गा रहे हैं। खुदा हम गाए हो ज़ैना तू राजा। सिर्फ गाने के लिए मत गाए, मुझे नहीं पता आप किसकी स्तुति कर रहे हैं। जो लोग जानते हैं किसकी स्तुति कर रहे हैं, ठीक से कीजिए। हमारा खुदा हम गाए हो ज़ैना। चेक चेक चेक। आपकी आवाज़ों को उठाकर बोलिए, प्रभु हमारा खुदा
से छुड़ाने को Worship him. प्रभु की आराधना कीजिए। को कुर्बान किया प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, राजा प्रकाशन से उसकी स्तुति करें। राजा तेरी महिमा होवे सदा। हालेलुया। हमारा खुदा, तू है प्रभु, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है। हमारा खुदा। ध्यान से सुने इस वक्त, ध्यान से सुने। आपने देखा कोई कोई लोगों ने हाथ उठाया, कोई कोई लोग खड़े हो गए। अब खड़े मत हो जाए, सुनिए इस वक्त। जो लोग खड़े हैं खड़े रह जाइए प्लीज। वेरी गुड। कोई कोई लोगों ने हाथ उठाया, कोई कोई लोगों ने हाथ नहीं उठाया। कोई कोई लोग जोर से गा रहे थे, कोई कोई लोग धीमी आवाज से गा रहे थे, कोई कोई लोग खड़े हो गए, कोई कोई लोग रोने लगे। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि आपके पास वो प्रकाशन है। आपको पता है कि स्तुति में मुझे हाथ उठाना है। वर्शिप लीडर को बोलने की जरूरत नहीं, चलो हाथ उठाओ। बेचारे लोग बोलते रहते हैं, बोलते रहता है, गलत नहीं है, बोलते रहते हैं, चलो हम लोग आवाज उठाएं। आपको पता नहीं है क्या? आपके पास प्रकाशन होना जरूरी है। चलो हम आवाज उठाएंगे। आपको नहीं पता क्या? सर, आपके दिल को खोला आज। कहीं तो आप चूक रहे हैं, कहीं तो वो प्रकाशन आपके अंदर, वचन तो आया है लेकिन वो ज्योतिमय नहीं हुआ है। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? कोई कोई लोग हाथ उठाते, बेचारे लोग खड़े हो गए और रोने रोकर स्तुति करने लगे। क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि आप सिर्फ मनुष्य की आराधना नहीं कर रहे सर, आप राजाओं के राजा प्रभु स्वयं उसकी आराधना कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं पता? प्रभु हम क्या है? प्रभु हम तेरे सामने स्तुति कर रहे हैं। सर कभी कभी सुनिए, नॉट हेड नॉलेज, दिमागी ज्ञान नहीं, नॉट हेड नॉलेज, दिमागी ज्ञान नहीं, बट रेवलेशन, पर वचन का This प्रकाश। is my first session, so I want to put a ground, a foundation, और proper ये foundation. मेरा पहला सेशन है, इसलिए मैं बुनियाद डाल रहा Not head हूँ। knowledge, और दिमागी ज्ञान नहीं, revelation. पर वचन का प्रकाशन। Sir, even I've got my doctorate, और मैंने भी अपना डॉक्टरेट किया है, but that is nothing. पर वो ज्यादा मायने नहीं रखता। दिमागी ज्ञान मायने नहीं I've written रखता। many books, you can और ask my team, मैंने but that बहुत- is nothing. मैंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, पर मायने नहीं रखता। It's nothing. ये कुछ भी नहीं है। I've been to nations. और मैं बहुत सारे देशों में गया हूँ, कचरा है वो, कुछ मायने नहीं रखता है, लेकिन प्रकाश। आमेन, आमेन। मैडम आप गरीब हो सकते हैं, सर आप गरीब हो सकते हैं, आप टूटे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चुनौती देता हूं। आज प्रभु से कहो, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को ज्योतिमय करो। आमेन, 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 आमेन। Open the eyes, open my eyes, प्रभु मेरी आंखों को खोल, enlighten my eyes. और प्रभु मेरी आंखों को रोशन कर। आप यहां से जाओगे ना, सब कुछ बदल जाएगा। आमेन, आमेन। Pastors, your ministry will change. पास्टर्स, आपकी सेविकाई बदल जाएगी। जहां पर 10 लोग आते थे वहां 100 लोग आने लगेंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आगे क्या लिखा? पहला लिखा ज्योतिमय हो, बाद में क्या लिखा? कि तुम जान लो कि उसकी तुम जान लो। क्या जान लो मैडम? कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। उसकी बुलाहट की आशा क्या? उसकी बुलाहट क्या है? बाजू वाले को बोलो, तुम्हारी बुलाहट मेरी बुलाहट अलग हो सकती है सर। कितने लोग समझ रहे हैं? आजकल चर्च में कंपटीशन है, जेलसी है। क्यों पता है? क्योंकि हम अपनी बुलाहट को नहीं ठीक से पहचानते हैं। लेकिन जिस दिन पहचान जाओगे ना सर,
हम एक दूसरे को नीचे नहीं खींचेंगे, हम एक दूसरे को खंदा देंगे। Amen, 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 hallelujah. बोले मेरी बुलाहट गिटार वाले की है, मेरी बुलाहट वर्शिप लीडर की, तुम्हारी बुलाहट बिशप की है, चलो हम लोग मिलकर कुछ कार्य करते हैं सर। Hallelujah. The second thing he prayed, that I may know the hope of my calling. And the third thing he prayed is कि पवित्र लोगों में मेरी मिरास या विरासत की महिमा का inheritance, धन क्या है? विरासत। शब्द बोले विरासत। विरासत। यीशु मसीह चले गए लेकिन हमारे लिए विरासत छोड़ गए हैं। Amen, amen, amen. Jesus is gone up, लेकिन विरासत, बाइबल कहता है कि अच्छा पुरुष, a good man leaves an inheritance for his children and their children. और बाइबल कहती है कि जो एक अच्छा पुरुष है वो सिर्फ अपने ही औलाद के लिए नहीं पर अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी विरासत छोड़कर सर जाता सुनिए, है। इस वक्त आज वो अभिषेक उतर गया है। आमेन, आमेन। सर अपने मोबाइल बंद कीजिए, अगर आप सब कुछ अभी मोबाइल देखना बंद कीजिए, यीशु मसीह के चेहरे को ढूंढना शुरू कीजिए। इस वक्त सुनिए, इस वक्त एक विरासत जो आपके लिए रखी थी, जकेस की विरासत ये थी कि वो स्वयं सृष्टिकर्ता के चेहरे को देखे। हालेलुया। जकेस की विरासत ये थी। सब लोग यीशु मसीह के पीछे भागते थे, लेकिन एक दिन जकेस ने यीशु मसीह के चेहरे को देखा सर, और उसके मुंह से यीशु मसीह ने नाम लिया उसका। आज आपका शायद प्रभु नाम ले, हालेलुया। आमेन। आपके कार्य बताए। कितने लोग तैयार हैं इस वक्त? Are you ready, church? क्या आप तैयार हैं I've got कलीसिया? only a few minutes. This is my first session. Don't worry. I'm very happy actually. I came in a conference because in crusade I have to finish tap fast. मेरा Praise the पहला Lord. सेशन है, मैं बहुत खुश हूँ। Thank you, Jesus. धन्यवाद। क्या आप लोग ऐसी स्तुति करेंगे जैसे स्वर्ग नीचे उतर आएगा? हालेलुया। हमारी आंख एक प्रभु खोलेगा, हमारे कान खोलेगा, आमेन। और प्रभु उन बातों के बारे में हमें बताएगा, शायद दर्शन के द्वारा, शायद किसी तरीके से बताएगा, और बोलेंगे आज से मैं हारूंगा नहीं, आज से मैं आई एम मोर देन अ कॉन्करर हूं मैं जयवन से बढ़कर हूँ। जयवन से बढ़कर। आमेन। प्लीज स्टैंड अप मैट सर। आइए हम सब I खड़े हो got जाएं। 25 minutes only. मेरे पास That's सिर्फ great 25 time, मिनट है। lot of time. कभी-कभी लोग मुझे 25 minutes ही देते हैं। Yes. Be in prayer team. Yes. Please जल्दी से खड़े हो, जैसे फायर ब्रिगेड वाले खड़े होते हैं, ऐसे खड़े हो जाए। Thank you Lord. धन्यवाद यीशु। Hallelujah, Hosanna. कितने लोग जानते हैं? Hallelujah, Hosanna. मैं चाहता हूं कि आप लीड करो। Hallelujah, Hallelujah, Hosanna. Take it a little faster. Come on. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah. जोर से I'm waiting for the anointing that come. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah. Hallelujah, Hosanna. Sing it brother, sing it. Hallelujah, Hosanna. जोर से Hallelujah, Hosanna. Come on सभी लोग। और एक बार बोलिए। बोलिए प्रभु यीशु मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे। आंखों को खोल दे। दोनों हाथों को उठाइए सर, आप दोनों हाथों को उठाइए। मैं चाहता हूं कि दोनों हाथ, प्रभु देखो आपके पास रेवलेशन नहीं है, अब दोनों हाथों को उठाए, मुझे मत देखिए इस वक्त। बोलिए प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए। प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए। अपने इस हाथों को उठाकर ये मुद्दे को दोहराइए, प्रार्थना कीजिए इस वक्त। Begin to pray, begin to फिर pray, से begin to कहते pray, रहिए कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल। begin to pray right now. मुंह खोलकर कहिए प्रभु मेरी आत्मिक जब आंखों को तुम्हारी खोल आत्मिक दे। आंखें खुलेंगी, प्रभु तुम्हारे छिपे हुए धन को, छिपी हुई चीजों को बताएगा आपको। आमेन आमेन आमेन।
प्रार्थना कीजिए। अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करिए। को बुलाऊंगा क्योंकि आप लोग तैयार नहीं हो, ओके, रिसीव करने के लिए। आपने ये मिनिस्ट्री को रिसीव नहीं किया है तो ध्यान से सुने इस वक्त। थैंक यू फादर, इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। अपने हाथ उठाए प्लीज। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ए माइनर, थैंक यू होला। ए माइनर, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ए माइनर, ए माइनर। हालेलुया। ए माइनर सी जीनी। हालेलुया। हालेलुया। जोर से। I got 5 minutes more. Hallelujah. Oh तेरी स्तुति, oh तेरी स्तुति और आराधना। ले ब्रता को ले बांधे करीबा साथ महिमा से काम मेरे आत्मिक कानों को खोल दे। मेरे आत्मिक कानों को खोल दे। वचन का प्रकाशन मुझे दे। वचन का प्रकाशन मुझे दे। वचन की समझदारी मुझे दे। वचन की समझदारी मुझे दे। अपने हाथों को उठा करिए, प्रार्थना 4 बार दोहराइए जोर से। 4 बार दोहराइए जोर से। In the name of Jesus. यीशु के नाम Lord, में। I pray the word would become real to them. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि वचन इनके लिए असलियत का रूप ले। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Lord, let the word become real to them. प्रभु वचन इनके लिए असलियत का रूप ले। In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थशाली नाम में। यीशु के सामर्थशाली नाम प्रभु में। मुझे बता रहा है इस वक्त। Thank you Lord. The Lord is showing me. प्रभु मुझे बता रहा The है। Lord is showing me. दुष्ट आत्माएं लोगों के शरीर से निकल रही The हैं। demonic spirits are leaving the bodies of तुम्हारे people. घर से वो निकल रही The हैं। demonic spirits are leaving your house. अपनी आवाज़ को उठाए इस वक्त। Lift up your voice इस वक्त हम प्रार्थना करने वाले हैं। and we'll pray right now. यीशु मसीह के नाम से। In the name of Jesus जोर से Christ. मेरे साथ प्रार्थना कीजिए इस वक्त। Pray along with me. बोलिए यीशु मसीह के नाम से। In the name of Jesus Christ. हर एक शक्ति Every power जो मुझे और मेरे परिवार को बढ़ने से रोक रही है, every power that is stopping me and my जा family, यीशु के नाम से। out in Jesus' name. जा यीशु के नाम Out से। in Jesus' अपने name. हाथों को उठाइए प्लीज 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 Lift up your प्लीज। hands. हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हुए We हैं। have only 4 minutes left. बोलिए यीशु मसीह के नाम से। In the name of Jesus हर Christ. एक अंधकार की शक्ति Every spirit of जो darkness मेरे और मेरे परिवार को रोक रही है, that is stopping me and my family, आगे बढ़ने से, that is not allowing us to go उन्नति ahead, पाने से, that is not allowing us to आत्मिक prosper, उन्नति पाने से, and from spiritual prosperity, जा यीशु के नाम out से। in Jesus' name. जा यीशु के नाम से। Out in Jesus' इस name. वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। इस वक्त I'm praying for you आप right प्रार्थना now. करते रहिए इस You वक्त। keep on praying. आप प्रार्थना करते रहिए इस वक्त। Lift your hands and keep praying. कोई को लोग रो रहे हैं, There are people who are जो crying. लोग रो रहे हैं अपने आंसुओं को पोछो मत। And those who are crying, do not wipe your tears. परमेश्वर आपके आंसुओं को पोछेगा। Because God will wipe away your tears. मैं देख रहा हूँ इस वक्त कोई को लोग अपने हाथों को उठा नहीं पाते थे। And I know there are people who are not able to lift up their hands. ओ परमेश्वर उन्हें चंगाई दे रहा है। God is healing such people. Receive your healing right now. अपनी चंगाई को स्वीकारिए In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Hallelujah.
बोलियो प्रभु यीशु, कहिए लॉर्ड मैं जीसस, प्रार्थना में बढ़ना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना में बढ़ना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहता प्रभु हूँ। मुझ पर प्रार्थना का अभिषेक दे। प्रभु मुझे प्रार्थना का अभिषेक दे। वो अभिषेक आप पर आ रहा है, वो अभिषेक आप पर उतर रहा वो है। अभिषेक आप पर आ रहा है। हालेलुया, यस, वो अभिषेक आप पर आ रहा है। आमेन, आमेन। प्रभु तेरी अग्नि, फायर, लेट इट मूव राइट नाउ। प्रभु आपकी अग्नि यहाँ पर कार्य करे इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में प्रार्थना का अभिषेक आ रहा है। प्रार्थना का अभिषेक आ रहा है। सुजन, गॉड्स पावर इज कमिंग ऑन यू। और सूजन, प्रभु का सामर्थ आप पर उतर रहा है। प्रार्थना का अभिषेक आ रहा है। प्रार्थना का अभिषेक आ रहा है। फायर, अग्नि, अग्नि। पवित्र आत्मा की कोई अग्नि। लोग गिर रहे हैं, उनको छूना नहीं। कोई लोग गिर रहे हैं, उनको छूना नहीं। ओह हालेलुया, हालेलुया। वो प्रार्थना का अभिषेक आ रहा है। प्रार्थना का अभिषेक आ रहा है। Pastors, raise your hands. Pastors, lift up your hands. Leaders, raise your अपना hands. हाथ उठाइए लीडर्स। सारे लोग अपने हाथों को उठाइए। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना In the name of कीजिए Jesus. यीशु के नाम जिसको में। प्रार्थना का अभिषेक चाहिए, ले लो। Amen. Fire, अग्नि, fire. प्रभु की अग्नि In the name of Jesus. यीशु के In the नाम name of में, Jesus. यीशु के In नाम the name में, of Jesus. यीशु के नाम तो में। अपने मुंह को खोलिए, अपने हाथों को उठाइए, बोलिए यीशु, यीशु, मुझे प्रार्थना में बढ़ना है, मुझे प्रार्थना में बढ़ना है, मुझे आत्मिक उन्नति होना है। मुझे आत्मा में बढ़ना है In the name of Jesus. यीशु के नाम In the में, name of Jesus. यीशु के नाम अरे में। तंत्र मंत्र की विद्या नाश हो जाए, हर तंत्र मंत्र की विद्या नाश हो, नाश हो जाए। नाश हो जाए In the name of Jesus. यीशु के नाम दुष्ट में। आत्माएं जा रही हैं, आमेन, दुष्ट आत्माएं जा रही हैं। आमेन, आमेन, In the name of Jesus. यीशु के जोर से नाम मेरे में। साथ चिल्लाइए, प्रभु तेरी अग्नि भेज। कहिए प्रभु तेरी अग्नि भेज। Fire is coming. प्रभु तेरी अग्नि को Fire is भेज। coming. प्रभु की अग्नि उतर रही है। जो भी चीजें तुम्हारे प्रार्थना को रोक रही हैं, वो आज से जा रही हैं। आमेन, अपने हाथों को उठा के अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। वो अन्य भाषा का वरदान रिलीज हो जाए, रिलीज हो जाए, रिलीज इट। अपने मुंह को खोलिए, इधर उधर मत देखिए, दोनों हाथों को उठाइए। प्रार्थना का अभिषेक, प्रार्थना का अभिषेक यस, रिसीव स्वीकारिए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में। फायर अग्नि इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम वो में। अग्नि उन पर उतरे प्रभु अग्नि मुझ पर इन द उतरे नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है। जोर से बोलिए, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, प्रभु यीशु मुझे क्षमा तेरे कर, लहू से मुझे धो दीजिए। तेरे लहू से मुझे धो ले। मैं प्रार्थना में बढ़ना चाहता मैं हूँ, प्रार्थना में बढ़ना चाहता हूँ। प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने प्रार्थना में ध्यान नहीं दिया, मैंने प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। बहुत सारी चीजों पर ध्यान दिया, लेकिन प्रार्थना पे ध्यान नहीं दिया। प्रभु मैंने प्रार्थना में ध्यान नहीं दिया, मुझे क्षमा आज कर। मैं आपसे घोषणा करता हूँ प्रोफेटिकली कि आपकी कलीसिया, आपका काम, आपका जो भी आपका क्षेत्र है, वो बढ़ने वाला है यीशु के नाम से। ये प्रोफेटिक वर्ड को ग्रहण कीजिए इस वक्त। ये भविष्यवक्ता वाला शब्द स्वीकारिए। ये प्रोफेटिक वर्ड को ग्रहण कीजिए ये इस वक्त। भविष्यवक्ता का वचन स्वीकारिए। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास कुछ ही सेकंड बचे हुए हैं, कोई लोग गिरे हुए हैं। हालेलुया। एक लहर आप पर आने वाली है, हालेलुया। एक लहर आप पर आने वाली है। हालेलुया। दोनों हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को उठाइए और बोलिए, प्रभु कहिए प्रभु मैं अपने हाथों को उठाता हूँ मैं अपने हाथों को उठाता और हूँ तुझसे विनती करता हूँ, और तुझसे विनती करता हूँ, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझे इस्तेमाल मेरा कर। इस्तेमाल कर। हालेलुया। वो लहर आप पर आने वाली है, हालेलुया। वो लहर आप पर आने वाली है। हालेलुया। फायर, प्रभु की अग्नि, फायर, अग्नि उतरे, फायर अग्नि इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम अग्नि में। उतरे, वो हालेलुया। लहर उन पर चले, आमेन, आमेन। वो लहर तुम्हारे घर में चले, हालेलुया। तुम्हारी कलीसिया में, हालेलुया। तुम्हारी मिनिस्ट्री में। हालेलुया, हालेलुया। Somebody shout. कोई तो चिल्लाकर कहे हालेलुया। बोलिए हालेलुया जोर से। अपनी हाथों को उठाकर आंखों को बंद कीजिए।
प्लीज अब देखो मत, लोगों की आत्मिक आंखें खुल रही हैं। आमेन। दोनों हाथों को उठाओ मेरे भाई, प्लीज यहां वहां मत हिलो मत। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को मत खोलना, बोलिए यीशु यीशु, मैं तेरा दर्शन देखना चाहता हूं। मैं तेरा दर्शन देखना चाहता हूँ। पास्टर्स बिगिन टू प्रे। पास्टर्स प्रार्थना हम कीजिए। कितने भी बड़े हों, प्रभु हमसे बड़ा है। यस, आमेन आमेन आमेन। प्लीज अपनी आंखों को बंद कीजिए। थैंक यू जीसस। प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को, प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को, हमारे आत्मिक कानों को हमारी आत्मिक कानों को इस दोपहर के समय इस दोपहर के समय खोल दे। खोल दे। अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए। इधर उधर मत देखिए इस वक्त। आप प्रभु आपके मन में क्या डाल रहा है वो लेकर उसकी स्तुति करें। आंखों को नहीं खोलना सर। जो प्रभु आपके मन में डाल रहा है उससे आप बात करें। हो सकता है प्रभु प्रार्थना डाल रहा है इस वक्त, हो सकता है प्रभु स्तुति डाल रहा है। मुंह को खोले इस वक्त। हालेलुया। यस, बोलिए बोलिए बोलिए, मुंह को बंद मत रखिए। कुछ भी मत बोलिए, जो मन में डाल रहा है वो बोलिए। प्रभु किसी किसी से कह रहा है मेरी स्तुति कर, किसी किसी से कह रहा है मुझसे बात कर। मुंह बंद मत रखिए। होली स्पिरिट काम, होली स्पिरिट काम, होली स्पिरिट काम। ओ अंधकार लेकर जा, अंधकार लेकर जा उनके जीवन से, उन्हें रोशनी में लेकर आ। कोई लोग रो रहे हैं, अपने आंसुओं को पोंछो मत। पसीने आ रहे हैं, पोंछो मत, सिर्फ यीशु पर ध्यान दो। यस 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 यस, होली स्पिरिट फ्लो। पवित्र आत्मा कार्य कर। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर चंगाई दे रहा है। आमेन आमेन। Yes. बहुत सारे लोगों को परमेश्वर छुटकारा दे रहा है। ऐसे लोगों को आपके शरीर में आग उतर रही है, ऐसे लोग जोर से चिल्लाइए यीशु। आपके शरीर में आप कंपन महसूस कर रहे हैं, आपका शरीर हिल रहा है, ऐसे लोग जोर से चिल्लाइए यीशु। होली स्पिरिट उतर रहा है, पवित्र आत्मा उतर रहा इधर है। उधर मत देखिए। होली स्पिरिट काम, होली स्पिरिट काम। कोई अपने हाथों को उठा के प्रार्थना कीजिए। लीडर्स को इधर उधर देखे मत, बोलिए प्रभु तेरी अग्नि उतरने दे। अग्नि उतरने दे प्रभु। फायर। प्रभु तेरी अग्नि उतरने कोई लोग गिर रहे हैं, कोई लोग गिर रहे हैं। फायर। प्रभु तेरी अग्नि उतरे। फायर। प्रभु तेरी अग्नि उतरे। स्वर्ग खोल दे प्रभु। हालेलुया। Oh, in the name of Jesus. यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम Let में। people catch a revelation. और प्रभु इन लोगों को प्रकाशन मिले। प्लीज वॉलंटियर्स इधर उधर मत देखिए। पास्टर साहब लोग अपने हाथों को उठाइए और बोलिए प्रभु तेरी आग उतरने दे। Oh, hallelujah. Somebody say hallelujah. हालेलुया। Let your fire fall. प्रभु आपकी अग्नि उतरे। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। आप एक अलग स्थान पर जा रहे हैं। आमेन। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Amen. 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 मैंने कहा था ना गियर बदलने वाला है। अब 4th गियर में नहीं हो, अब 5th गियर में हो। कितने लोग प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं? How many of you feeling the presence of God? हाथ हिलाए, ऐसे लोग हाथ हिलाए। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। प्रकाशन तुम्हारे प्रभाव को बढ़ाएगा। Amen. बोलिए मेरे साथ, प्रकाशन प्रकाशन तुम्हारे प्रभाव को बढ़ाएगा। तुम्हारे प्रभाव को बढ़ाएगा। नहीं नहीं, जोर से बोलिए। प्रकाशन मेरे प्रभाव को बढ़ाएगा। प्रभाव को बढ़ाएगा। प्रकाशन के वजह से प्रकाशन के वजह से मैं प्रभु से बहुत सारी चीजें पाऊंगा। मैं प्रभु से बहुत सारी चीजें पाऊंगा। संसार का प्रकाशन नहीं, संसार का प्रकाशन नहीं, वचन का प्रकाशन, वचन का प्रकाशन पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए।
मेरी आत्मिक आंखें खुल गई हैं, मेरी आत्मिक आंखें खुल गई हैं, मेरे आत्मिक कान खुल गए हैं। मेरे आत्मिक कान खुल गए हैं। प्रभु को धन्यवाद दो प्लीज। मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद कहिए। My first session is over.